So, hello and welcome everyone. We have entered into, just let me see, fourth chapter. And today we are going to discuss on top, beginning of top quality company. We can't say that this week, the assignment which you have created is the final list for quality company. But yeah, you have just begun to search quality companies from where? From demanding industries. So we are going to discuss the data of your top quality. Okay. Now, so now let me remind you what we have learned this week, how we have started analyzing quality companies, right? What we saw that demanding list which you have already created, we made a final data of all your work in demanding industries till now. What we were looking for those industries which were able to grow their sales, and only sales. We were initially not interested in profits because profits would be seen only in case if your company are able to do sales. बराबर की नहीं? धंधा, धंधे पे फोकस करना था, क्योंकि धंधा नहीं कर सकेगी अगर इंडस्ट्री, पैसा अगर आएगा ही नहीं इंडस्ट्री के पास तो वो क्या प्रॉफिट करेंगे? प्रॉफिट इज यूजलेस इफ दे आर नॉट एबल टू डू sales, that is revenue, that is dhanda. So that was the reason you have looked only on sales, right? You created your own data of demanding industries, and these were some of the industries which you identified that okay, these are demanding industry. Maybe there would be some mistakes, and that mistakes will be seen when you will further do work on quality companies, right? So this is your rough raw data, and let us work on your raw data. This was the list of demanding industries as per your data. There might be mistake by somebody. Don't depend on any other person's data, right? This was the list of your average growing industries. This was the list of your decaying industries. Those industries whose sales were degrowing, right? Now we started to work on top quality companies from demanding industries. Okay. You try to sort out good companies from that whole industry. For example, if we selected department store as a growing sector, then what we did, we tried to see that if department store will grow, if this industry is growing by 15%, 20%, then which company will be able to grow? ऐसा नहीं होना चाहिए कि धंधा बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ रहे कंपनियों के, तो आपकी कंपनी के भी धंधे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पे डेप्ट इतनी है, उसके मार्जिन बिल्कुल नहीं है, तो हुआ क्या? धंधा बढ़ने के बावजूद भी आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सकी। ऐसा मैंने कई सेक्टर में देखा है, हजारों कंपनियों में देखा है कि वो धंधा कर पाती है क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी है, पर हाई डेप्ट के कारण, खराब मैनेजमेंट के कारण 10 साल 15 साल बाद भी वो कंपनियां नहीं बढ़ती है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कर पाती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट? ऐसा ना हो कि हम बढ़िया सेक्टर में हो पर कंपनी ऐसी हाथ लगी कि अच्छा धंधा बढ़ने के बावजूद भी हम नहीं कमाए, राइट? दिस शुड नॉट हैपन। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो आपने क्या किया? आपने लिस्ट बनाया, एक सेक्टर में कितनी कितनी कौन सी कंपनी है, आपने उसका लिस्ट बनाया, राइट? आपने वो लिस्ट को बाइफरगेट किया, राइट? पीयर ग्रुप्स के साथ अलग 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 सेल्स वाइज, मार्केट कैप वाइज आपने पूरा डेटा बनाया। आपने ऑटो मार्केट कैप सेट किए, ऑटो प्राइस सेट किया ताकि ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए गूगल शीट में मार्केट कैपिटल और भाव भी। आपने सीखा
कि मार्केट कैप कैसे धंधे के साथ कनेक्टेड है, राइट? कैसे धंधे के साथ कनेक्टेड है, धंधा कैसे प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों ने देखा ना कि एसबीआई धंधा सबसे ज्यादा करता है, पर मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट तगड़ा करता है, राइट? और आने वाले समय की उम्मीदें भी एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा है। सेम थिंग इन सेवरल सेक्टर्स, राइट? सो रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट कैप, नहीं तो जनरली ये देखा जाता है कि वो कंपनी कोई भी कंपनी का मार्केट कैप अच्छा होता है क्योंकि वो कंपनी का धंधा और प्रॉफिट तगड़ा होगा, राइट? एक ही केस में कोई दूसरी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होगा अगर वो कंपनी भले छोटी है पर बढ़िया मार्जिन है, बढ़िया प्रॉफिट कर रही है, अपने से बड़ी कंपनियों को मात दे रही है, तो मार्केट कैप उसका ज्यादा होगा, राइट? आपने रिलेशनशिप देखी इक्विटी की, मुर्गी पहले की अंडा, हाँ? वैसे धंधा पहले आता है कि इक्विटी? तो इक्विटी पहले आती है, राइट? आपने इक्विटी देखी, आपने उसको फेस वैल्यू से कोरिलेट किया और आपने टोटल शेयर्स ढूंढना सीखा कि कोई भी कंपनी की तुम मेरे को इक्विटी और फेस वैल्यू बोल दो, मैं बता दूंगा कितने शेयर है वो कंपनी के, ये आपने गिनना सीखा, राइट? तो कुछ आप लोगों ने अब तक एनालाइज किया है। अब हम आप लोगों के होमवर्क पे आते हैं, राइट? सो चिंतन भाई, कैन यू हियर माय वॉइस? यस पीयूष भाई, लाउड एंड क्लियर। चिंतन भाई, एक हेल्प चाहिए आपकी। हाँ बोलिए। हम क्या करेंगे, कई पार्टिसिपेंट है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिनका नंबर पीछे लगता है उनको कम मौका मिले बोलने का, बराबर कि नहीं? ऐसा जनरली हो जाता है। तो हम यस। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे आज कि हम पहले से लेके आखिरी के व्यक्ति तक जो बात करेंगे, आज हम A to Z चलते हैं, ऊपर से नीचे, ओके। पर जिससे भी बात करें वो मैक्सिमम 4 मिनट के समय में अपने प्रेजेंटेशन को रखे, बराबर की नहीं? ओके। क्योंकि हमें ये तो सीखना ही पड़ेगा कि हम किस प्रकार से कम समय में ज्यादा प्रेजेंट कर सके, राइट? ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस एक्सरसाइज। हम आपको पूछेंगे, 4 मिनट का आप सबके पास समय है, पर 3 मिनट होगी। फिर चिंतन भाई खाली याद मत करा देना कि अब आपके पास 1 ही मिनट का समय है, ताकि उनको पता रहे कि नाउ आई हैव लेसर टाइम, बराबर है? करें आज इस प्रकार से, ताकि सबको नो इक्वल प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर ना? ओके, चलो हम शुरुआत करते हैं अभिषेक देशमुख से। सो लेट मी चेक फर्स्ट, अभिषेक देशमुख ऑनलाइन है कि नहीं है। मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन मीटिंग में नहीं हो पाते हैं, अब तक हमारी मीटिंग्स में अभिषेक जी से बात नहीं हुई है, बट लेट मी चेक हियर स्टिल। सर अभी टाइमर बजा था, ऐसा आवाज आएगा, चलेगा ना? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, अच्छा रहेगा उल्टा, बराबर है? ओके। तो अभिषेक जी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, इट्स ऑल राइट, लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा अभिषेक भाई, बराबर की नहीं? जस्ट लेट मी चेक। ओके, होमवर्क करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आने वाले समय में। हाँ, खाली थियरी से कभी भी शेयर बाजार समझ में नहीं आएगा, राइट? सो माय रिक्वेस्ट अभिषेक जी, काइंडली डू समथिंग, राइट? आपके पास बहुत बढ़िया सेक्टर थे, देखो बैंक, प्राइवेट बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, एलएनटी, हाउसवेयर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, टीटीके के बारे में कैसे जानेंगे, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो चारों तगड़े सेक्टर थे आपके पास, राइट? नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स अमरनाथ आर ठाकुर। अभिषेक जी से मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीक जब हम आपसे बात करें तब हम इन चीजों पे चर्चा जरूर करेंगे अभिषेक भाई, हेलो राइट? या हेलो यस अमरनाथ जी, सर आवाज आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है। सर मैं 10 मिनट के बाद करूं आपसे बात? मैं ऑन द वे हूँ। या नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो, तब तक हम दूसरों से बातचीत कर लेते हाँ हैं, सर, कोई राइट? दिक्कत नहीं, मैं वीडियो तो देख रहा हूँ, घर ओके, पे जाके कर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, सो आनंद अमरनाथ जी के पास ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट है, वंडरफुल सेक्टर, फाइनेंस, ऑयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, चारों चार सेक्टर इंपॉर्टेंट है और हमें इनकी माहिती चाहिए होगी, राइट?
Next comes Anand Kumar Chinya. So Anand Kumar is from US, and Anand Kumar is also not able to attend meeting due to time constraints. बराबर कि नहीं, वहां पे अलग समय है. So we are not able to talk with Anand ji, but we have seen Anand Kumar have completed his homework every time. So wonderful, Anand ji. Yes, we will check your 2-3-wheeler, electric utilities, IT consulting software, oil equipment, because ऑयल इक्विपमेंट छोड़ो पर 2-3-व्हीलर और आईटी कंसल्टिंग, ये दोनों सेक्टर बहुत ही जरूरी है हमारे लिए आनंद जी. राइट, आई होप, मैंने चेक नहीं किया है बट आनंद जी वुड बी नॉट देयर इन टुडेज मीटिंग. कभी भी मैं कहूं नहीं होंगे पर आप हो तो बोल देना. ओके, बिपिन शाह. यस बिपिन भाई का मेरे को नहीं पता. बिपिन भाई, आर यू देयर इन टुडेज मीटिंग? ओके, बिपिन भाई के पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बिपिन भाई जानकारी चाहिए होगी हमें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, आयरन एंड स्टील की, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं, और फार्मा की. देखो ये फार्मा और एएमसी और आयरन एंड स्टील, इनफैक्ट ये तीनों ग्रोइंग सेक्टर है, अच्छे सेक्टर है. हमें पता रहना चाहिए इन तीनों सेक्टर में कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है. राइट, सो वी विल टॉक विथ यू लेटर. Deepak Patel. Yes, Deepak bhai. I can see you in the meeting. Can you unmute yourself? Hello, sir. Yes, Deepak bhai. How are you, sir? Fine? Fine, sir. Okay. So, Deepak bhai, आपका मैसेज मैंने देखा था, वो आप होमवर्क नहीं कर पा रहे थे, है ना? So, ऐसा कभी भी हो तो आपने मैसेज लिखा, हमने उस समय देखा. राइट, क्या हुआ है, कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की गलती से जो आपको जो राइट दिए गए होते हैं वो राइट चले जाते हैं. तो मैंने चेक किया तो वो राइट सबके चले गए थे. अगेन मैंने एक्टिव किया, तो ऐसा प्रॉब्लम था उससे पहले, लेकिन आपने होमवर्क भी कुछ किया हुआ था. बराबर? हाँ सर. तो दीपक भाई 4 सेक्टर है, 4 मिनट है. मैं चाहूंगा आप कोई भी 1 या 2 सेक्टर पे बातचीत करें और समझाने का प्रयत्न करें कि ये सेक्टर में कौन सी कंपनियों पे हमें वेटेज देना चाहिए, उनका बिहेवियर चेक करना चाहिए. राइट, बताइए कौन सी सेक्टर पे मैं जाऊं? सर, ब्रूज एंड डिस्टिलरीज. ब्रेवरेजेस एंड डिस्टिलरीज. ओके, यस, आपका समय शुरू होता है. राइट, कहिए सर. सर इस सेक्टर में मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप कंपनी का देखें तो 83,937 करोड़ का मार्केट कैप है सर, ब्रूज एंड डिस्टिलरीज का. राइट, और उसमें 50% अप्रॉक्स 90% तो 2 ही कंपनी ले लेती है, जो यूनाइटेड स्पिरिट और यूबीएल. और सेल्स में भी उनका ही ज्यादातर यह है सर. राइट, और प्रॉफिट भी उनका ही, कंट्रीब्यूशन उनका ही ज्यादा है सर प्रॉफिट में. मतलब हमें अगर ध्यान देना चाहिए ये सेक्टर में धंधा कौन कर पा रहा है. मूल तो क्या है, देखो मार्केट कैप तो मिला है. हाँ सर. दीपक भाई, मार्केट कैप उन्होंने नहीं बनाया है, बराबर कि नहीं? मार्केट कैप तो हम बनाते हैं, इन्वेस्टर. राइट, उन्होंने क्या किया है, तगड़ा धंधा किया, तगड़ा प्रॉफिट किया. ये 3 कंपनियों ने, यूनाइटेड स्पिरिट, यूबीएल और रेडिको ने. राइट, ये 3 कंपनी वो है जिनका बड़ा मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री में. तो इनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं. लेकिन अभी क्वालिटी देखेंगे कैसे, कौन सी कंपनी को हम क्वालिटी में कह सकते हैं कि ये 3 में ये कंपनी पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, उसमें क्या कहोगे आप? सर नेट प्रॉफिट मार्जिन सर. हाँ, ओके, आ गया मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन पे. सर उसको शॉर्ट करूं मैं? हाँ सर, मैंने कर दिया. ओके. सर इसमें जो टॉप धंधा करती हैं जैसे यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट. एक यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट, उसके हिसाब से यूबीएल का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है सर बाकी सब तीनों से. राइट, ओके, यूबीएल का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है,
पर हम इसको बहुत ज्यादा हाँ, भी नहीं कह सकते, बराबर कि नहीं। देखो हाँ मार्जिन सर, देख के तो ये लगता है कि तीनों का एक जितना ही मार्जिन है, राइट। हाँ सर, तो हमारी हाँ सर, आइडिया क्लियर नहीं होती है दीपक भाई कि मैं यूबीएल लू, यूनाइटेड लू की रेडिको लू। मुझे लेना तो बराबर, आपके ये डेटा के हिसाब से अभी भी यूनाइटेड स्पिरिट ही चाहिए, क्योंकि बराबर, यूनाइटेड स्पिरिट का धंधा ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, मार्जिन हाँ सर, थोड़ा कम है यूनाइटेड स्पिरिट से और रेडिको से, बराबर कि नहीं। हाँ सर, तो मार्जिन के अलावा हाँ, और भी क्या देखना चाहिए? मार्जिन के अलावा सर अपना इक्विटी, इक्विटी का डेटा, कम इक्विटी नहीं, से जो ज्यादा धंधा करती है, हाँ इक्विटी से पता नहीं चलेगा हमें। जैसे यूबीएल कम। हाँ, हाँ सर, इक्विटी से हमें क्या गाइडेंस मिल सकती है कि यूनाइटेड स्पिरिट का अगर इक्विटी 145 करोड़ है तो 150 हाँ सर, करोड़ मतलब इनके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बराबर कि नहीं। हाँ सर, तो हाँ हम सर, सबके हिस्से में कम कम पैसे आने वाले हैं, तो हमें रियल वर्थ नहीं मिलेगा। पर यूबीएल का इक्विटी बहुत छोटा है, तो इस केस में हाँ, देखो 150 करोड़ के इक्विटी पे 700 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, पर यूबीएल हाँ, खाली 26 करोड़ के इक्विटी पे 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। यानी मुझे कम इक्विटी में काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इस केस में, तो मेरा रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटीज का बहुत हाई होगा, हाँ है सर, ना। वो डेटा अभी हमने नहीं डाला है ना। नहीं हाँ ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, खाली मार्जिन से हमें पूरी आइडिया नहीं मिल सकती, बराबर है। मार्जिन के साथ दो और चीजें हमें देखनी है। पहले हमने मार्जिन चेक कर लिया, राइट। मार्जिन देखने के बाद हम हाँ सर, जा सकते हैं एक आईसीआर पे। आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि ये जो कंपनी है उनकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, जो अगर आपके चैप्टर में नहीं आई है हम नेक्स्ट वीक वो पढ़ेंगे, बराबर है। हाँ सर, हाँ सर, हमें इतना तो पता चल रहा है कि चलो शुरुआत हुई और ये तीनों कंपनियों के मार्जिन एक जितने हैं। अब हमें इसकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी चेक करनी होगी। जिसकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी ज्यादा, वो कंपनी के मार्जिन की कंसिस्टेंसी रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, राइट और रॉन्ग, राइट, राइट। तो आईसीआर भी चेक करेंगे और हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी चेक करेंगे, राइट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मुझे आपके सर, पूरे लेकिन सेक्शन में से, हाँ कहिए कहिए, हेलो क्या कह रहे थे आप? सर, जैसा आपने अभी कहा, तो सर जो अभी डेटा अवेलेबल है उसमें अगर सेलेक्ट करना है तो क्या क्या देखना है सर? एक तो राइट, सेल्स और प्रॉफिट ही, एक सेल्स सेल्स और प्रॉफिट। तो देखना ही, धंधा तो हाँ, जरूरी है ही, बराबर हाँ सर, है। धंधे के बाद आ जाइए सीधे मार्जिन पे, कि सब हाँ एक सर, जैसा धंधा कर रहे हैं, सबकी एक जैसा रॉ मटेरियल, सबको एक जैसे चैलेंजेस, तो सबके मार्जिन एक जितने ही होने चाहिए। पर सबके मार्जिन एक जितने इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट वीक होते हैं, कुछ हाँ, कंपनियों के पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट होती है जिन पे उनका मार्जिन अच्छा रहता है, मोनोपोली होती है। हाँ, कुछ कंपनियों के पास हाँ कुछ सर, मोनोपोली नहीं होने के कारण भी मार्जिन कम रहते हैं। तो हमें सबसे पहले हाँ मार्जिन सर, देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी धंधा जो कर रही है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है, बराबर कि नहीं। हाँ धंधा सर, तो किया पर मुनाफे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपका धंधा अगर कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक लोन के हफ्ते में ले जाएगी तो हमें क्या फायदा? फिर तो ये कंपनियां हाँ, कोटक और एचडीएफसी के लिए मेहनत कर रही है, हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, राइट। राइट, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो ये जरूरी है। आपके ब्रेवरेजेस के केस में तीनों के मार्जिन ऑलमोस्ट एक जितने हैं, हाँ सर, बराबर है। अब हाँ नीचे की जो कंपनियां हैं आप देखो तो सर जस्ट टू मेजोरिटी इन्फॉर्म, कंपनी, 4 मिनट्स उनके हो गए, ओके, जस्ट टू इन्फॉर्म। या थैंक यू चिंतन भाई। ओके, ज्यादातर जो कंपनियां यहाँ पे है वो कंपनियां क्या कर रही है दीपक भाई? लॉस कर रही है, देखा आपने। हाँ सर, हाँ सर, तो ऐसी कंपनियों में क्या किया जाए? सर देखना देखने ही की नहीं है ही सर। नहीं, देखने का ही नहीं इन कंपनियों को। यही वो हाँ कंपनियां हैं जिनकी टिप चलती है बाजार में। ये हाँ सर, कंपनियां भी डबल होती है, डबल छोड़ो चार चार गुना होती है, पर ये हाँ चार सर, चार गुना उम्मीद पे होती है कि अब ये भी प्रॉफिट करेगी,
फिर क्या होता है, अचानक रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं, अचानक इनकी बॉटल्स पैकेजिंग के दाम बढ़ जाते हैं, अचानक सरकार कभी ड्यूटी ज्यादा लगा देती है। तो ये जो घटिया कंपनियां हैं जो लॉस कर रही थी, आशा थी प्रॉफिट में आने की, ये वापस लॉस करने लगती है। तो आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी देखोगे तो ये वही गोल गोल घूमती रहती है, कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। इसीलिए टॉप की कंपनी में रहो जो धंधा कर पा रही है और जो घर कुछ ले जा पा रही है, राइट। जो बुरे समय में भी प्रॉफिट करे, वो कंपनी, वो घोड़ा अपना सबसे तगड़ा घोड़ा है, बराबर कि नहीं। तो आप घोड़ों को लेके मैदान में उतार रहे हो और घोड़ा बोलेगा आज तो मौसम अच्छा नहीं है, ठंडी है, मुझे आलस आ रही है, तो भाई तेरे को ठंडी के मौसम में ही ज्यादा दौड़ना है। जब दूसरे घोड़े नहीं दौड़ पा रहे उसी समय तेरे को तगड़ा दौड़ना है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एज जब होती है, जब सब में प्रॉब्लम हो, तब आपकी कंपनी प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। हेलो ये चीज हमें बिहेवियर से सीखने सर, को मिलती है। वॉइस कट हो रहा है सर। वॉइस कट हो रहा है मेरा, नहीं सुनाई दे रहा है प्रॉपरली सबको? नहीं सर। सर, क्लियर क्लियर आ रहा सर। हाँ मेरे को ओके, ऐसा हो तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, अगर और किसी को भी ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है तो टेल मी, आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो, राइट। तो क्लियर आ रहा है सर, क्या आ रहा है? क्लियर आ रहा है वॉइस। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। या सो ऑलवेज चेक फॉर दिस मार्जिन, आपके मार्जिन अच्छे होने चाहिए। देखो मैं 10 साल पहले जब ये सेक्टर में निवेश करता था, तब भी मुझे यही कंपनियां मिल रही थी, तब भी यूनाइटेड स्पिरिट, यूबीएल, रेडिको, ये तीनों कंपनी अच्छी थी। जीएम ब्रू उस समय भी एकदम छोटी कंपनी थी, पर जीएम ब्रू के देखो आज देख रहे हो आप मार्जिन सबसे डबल है। तो आज भी आप देख रहे हो मार्जिन उसके डबल है, क्योंकि ये डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट। तो मैंने उस समय जीएम ब्रू में भी पैसा लगाया था, राइट। क्यों? क्या देख के कि इनके मार्जिन अच्छे थे, ये डेप्ट फ्री कंपनी थी। जीएम ब्रू ने अब तक 15-20 गुना पैसा 15-20 टाइम्स करके दिया है, लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी, रीजनल कंपनी होने के कारण इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ये 3-4 बार आधा भी हो गया है, तो बहुत गिरता है, राइट। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि बहुत छोटी कंपनी में निवेश करोगे तो कम पैसा डालने का, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी होती है, राइट। यूबीएल में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी जितनी जीएम में होगी, बराबर की नहीं। तब मेरी सोच इतनी नहीं थी, बराबर है। सो ऑलवेज गो फॉर लार्ज कैप विथ बेस्ट। जीएम अच्छी कंपनी है, पर धंधा तो नहीं कर पा रही है ना उतना जितना ये लोग कर पा रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान रखो, पॉजिटिव भी ध्यान रखो, बराबर है। आज हम इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीक जब आपका चैप्टर पूरा होगा तब हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। ऑल राइट सर, राइट सर, राइट सर, ओके, थैंक यू। या सो थैंक यू और वेरी सर मच मैंने दीपक भाई। अपना या कहिए कहिए पूरा इंडस्ट्री, डिमांडिंग इंडस्ट्री का भी पूरा काम कर दिया है सर। दीपक भाई, पूरा सारे सेक्टर की डिमांडिंग है, सारा 123 सेक्टर। हाँ, 129 सेक्टर सर। वाओ, ताली हो जाए दीपक भाई के लिए। वंडरफुल दीपक भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। तो देखो आपने भी सारे सर सेक्टर वो पे काम कर लिया, तो आपके डेटा और लोगों के जो डेटा है उसमें कुछ फर्क आए होंगे बहुत से सेक्टर में, हाँ सर, बहुत फर्क आया है सर है ना? उसमें। सेल्स के फिगर में डिफरेंस था। या इसीलिए दूसरों के डेटा पे पूरा विश्वास नहीं करने का, खुद एनालाइज करो और आगे बढ़ो। तो बहुत बढ़िया काम किया। जब इतने सारे सेक्टर पे काम किया तो कुछ चीज शेयर करना चाहोगे लोगों से, कुछ जानकारी एडिशनल मिली हो? सर एक्चुअली जैसा आप कहते थे कि मार्केट कैप देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा कंपनी हम्म, कुछ कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन उसको हाँ, मार्केट कैप देती थी, जैसा बराबर, प्राइवेट बैंक में भी हमने देखा। राइट, और कुछ कंपनी तो जैसे इंडिया से भी कम ग्रोथ कर रही है, कुछ बराबर, सेक्टर। राइट, ओके, और सर मेरा एक क्वेरी था सर। हाँ, जो अपना सब सेक्टर बनाने के लिए जो आप कहते हैं, जैसे हाँ, फार्मास्यूटिकल में आपने फॉरेन राइट, एमएनसी फार्माटिक और इंडियन फार्मा को अलग करने के लिए, राइट। तो सर वो तो उसको अलग सेक्टर ही गिनना चाहिए और सर उसको नहीं, फार्मा अलग सेक्टर नहीं गिनना चाहिए, पर दीपक भाई ये ध्यान रखने का कि एमएनसी जो कंपनियां हैं
वो लिमिटेड इंडिया में धंधा कर रही है, इसलिए उनका ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाता है। उनको अलग निकालने के बाद चेक करो कि एमएनसी ना हो तो ग्रोथ कितना है, तो हो सकता है आपका ग्रोथ बहुत बढ़ जाए और आप सोच के बैठे हो कि ये सेक्टर बढ़ ही नहीं रहा है। वो एमएनसी की वजह से नहीं बढ़ रहा है। रियल इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग, ओके, बराबर ना? राइट। ओके, पर फिर भी देखो, आपने और अमरनाथ जी ने, आप दोनों ने सारे सेक्टर पे काम कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप दोनों से एक बार रूबरू पूरा 30-35 मिनट्स लेके आप दोनों से चर्चा करेंगे, बराबर है? स्पेशली एक अलग सेशन में, है ना? ओके, ओके, थैंक यू। yeah, so thank you very much to Deepak Patel. Let us move to Deepak Shelke. Yes, Deepak bhai, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो दीपक भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आवाज आ दीपक रही भाई? क्लियर? या क्लियर आवाज आ रही है? गुड इवनिंग दीपक सर। भाई। बढ़िया बढ़िया। हाँ सर, हाँ सर, वो सुबह वो गलती है ना, वो मेरे से हुई थी। जो सबका लिंक है ना, वो कोई ओपन नहीं बात हो रहा नहीं। था ना, और पिछली बार भी अच्छा मेरे से हुआ था। वो क्या हुआ था, हाँ, वो इंसर्ट लिंक है ना, वो कर रहा था मैं, पर वो कुछ प्रॉब्लम से यूआरएल है ना, वो मेरे को मिल नहीं रहा था। मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ ना, तो अच्छा, इसलिए तो अभी शायद कुछ दिन बाद में मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी शायद। बराबर, अभी ईमेल भेजते हो तो उससे समझ ओके, आया है अभी, बराबर। शायद हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए लेकिन मैं एक वो है काम ना, करना दीपक वो भाई, कनेक्ट नहीं कर पाया अभी। वो ओके, जो है, एक काम करना, हाँ, आपका अभी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने शेयर बाजार में अभी कितना किया हुआ है अब तक? 2 लाख। 2 लाख का ना? आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक बार हाँ कंप्यूटर जी सर। या लैपटॉप एक आप ले लेना यार दीपक भाई, क्योंकि ये जबरदस्त काम लगेगा, हाँ सर। है ना? एक लैपटॉप ले लेना हाँ यार, जी सर, जी सर, राइट? क्योंकि अभी तो हमने जी सर। शुरुआत की, अभी तो इतना सारा रिसर्च करना है कि ये जो 30-40 हजार का लैपटॉप है ना, ये आपको 3 से हाँ 4 करोड़ रुपए निकाल के देगा। मेरी बात भूलना नहीं, ये एक हाँ बहुत जी, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो जबरदस्त काम लगेगा, राइट दीपक भाई? तो वो कर लेना जी तो सर। आसान होगा, राइट? ओके, जी सर। हाँ और आपने जो बताया आपसे गलती हो गया था, तो वो देखो हमको तो पता चल जाता है इधर से, ये दिख रहा है मेरे मास्टर में आता है हाँ लास्ट एडिटेड, वो हाँ सेकंड अगो, मतलब अभी भी बातचीत के दरमियान भी कोई हाँ इसमें एडिट कर रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे को पता चल हाँ गया कि अच्छा आपसे गलती हुआ था, बट इट्स ऑल राइट, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो वापस रिवर्स भी हो गया, बराबर ना? तो हर गलती रिवर्स भी हाँ। हो सकती है, इसलिए कोई चिंता नहीं है इसमें ऐसी। नहीं ना, वो हम्म, चिंता नहीं है, मगर वो पार्टनरशिप है ना, जो लोग है ना, हाँ, उनको उनको लॉस दिक्कत हो होता जाती है है, ना मेरे वजह से, और ग्रुप में इसलिए डाल देने का दीपक भाई, ऐसा हो तो वही मेरे से कुछ प्रॉब्लम दिक्कत। हुआ है, प्लीज चेक कर लो, दुख होता बराबर? है। या तो आपके 4 सेक्टर है दीपक भाई, हाँ और आपका देखो मीटर चढ़ने लगा है वो 4 मिनट वाला, तो ये 4 में से कौन से सेक्टर पे बात करेंगे, बताइए? हाँ। कौन सा सेक्टर? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है दीपक भाई। हाउस होल्ड एप्लियंसेस, अदर नॉन फेरस, पैकेज फूड की, पीएसयू बैंक की, प्राइवेट बैंक, किस पे? सर आपका दीपक जी आवाज का कट गया आवाज नहीं आ दीपक, रहा है। नहीं आ रहा है दीपक भाई आवाज। दीपक भाई नो वॉइस। सर वो ओके, लॉग आउट हो गए हैं, कोई बात नहीं, ओके, हम दूसरे कंटेस्टेंट को ले लेंगे, नो उनसे प्रॉब्लम, वापस बात कर लेंगे। कुछ समय बाद वापस बात करते हैं, राइट? ओके, अभी वापस लॉगिन हो भी जाए तो हम वापस, अमरनाथ जी आ हाँ गए हाँ हैं। सर। ओके, अमरनाथ जी, हाँ, चलिए वो आ आपके गए। पास, हाँ अमरनाथ जी, 4 मिनट है, 4 सेक्टर है, ओके सर। कौन से सेक्टर पे अपन बात करेंगे, बताइए? नहीं सर, वो जो अदर फाइनेंशियल सर्विस है ना, उसकी में मेरी 5 क्वेरी थी, मैंने वो वहां पे लिख ही दिया है। ओके, चलिए, ओके, थोड़ा क्या नीचे कहना ले, चाहोगे अदर नीचे आ फाइनेंशियल जाइए। सेक्टर में? नहीं सर, ये अगर नई कंपनी आती है, मैंने यहाँ पे इन माई क्वेरी में लिखा हुआ है, देखें। हाँ,
कहिए। इसमें जब हम ये लेते हैं ना, पीयर ग्रुप लेते हैं सर, तो उसमें स्टैंड एलोन डेटा रहता है, तो हमें यहाँ Standalone पे ही आएगा। स्टैंड एलोन निर्णय लेना है। देखो, ओके, कंसोलिडेटेड ना लेना हम। नहीं नहीं नहीं, सुन लो बात अमरनाथ जी, आप जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो क्या आने वाला है? स्टैंड अलोन ही आने वाला है। पर ये तो आपने अभी शुरुआत की है, अभी तो बहुत सा काम बाकी है, राइट? अभी आपने जब कॉपी पेस्ट किया तो सबका स्टैंड अलोन का ही डेटा आ गया, राइट? आपको इसको कंसोलिडेटेड, जिन जिन कंपनियों का अवेलेबल है उनको कंसोलिडेटेड में चेंज करना पड़ेगा। आपके सेक्टर में कितना ओके, वो कंपनियां हैं मैन्युअली अभी? कर दे तो चलेगा ना? मैन्युअली करना पड़ेगा, इसका और मैंने कोई सर रास्ता नहीं है। हाँ हाँ लेकिन सब बरोबर। कंपनी का नहीं, चेक इसमें करने क्या की है सर, जरूरत नहीं मैंने है। आपने बताया था 90% कंपनी लेना है, तो मैंने सब में 90% कंपनी लिया है। एक मिनट, नहीं मैं ये नहीं समझा, मैं 90% कंपनी मतलब 90% मार्केट शेयर हो उतनी ही कंपनी। जैसे 150 कंपनी है तो 150 कंपनी को हम यहाँ पे बराबर। लेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। और सही बात है। ये सेक्टर में कितनी कंपनी है? 150 कंपनियां है। नहीं, इसमें नहीं, बजाज फाइनेंस जो सेक्टर में अदर फाइनेंशियल, हाँ, उसमें बहुत सारी है। बराबर है, बराबर। देखो एक बात, वो कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं। हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज तो ले ही लो, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी। ओके, क्या कर रहे हो? 95% कवर क्या? कर लूं। ठीक है, मैं, अगर आप एक बार मेहनत कर रहे हो, मैं जो ये 90% आपको इसलिए बोला ताकि आपका एक बार काम चालू हो जाए। और बरोबर। आप जब शांति से जब ये सेक्टर को लेते हो तो उस समय एक बार लिस्ट सब कंपनी का बना लो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी कंपनी का कितना मार्केट कैप है इस सेक्टर में और किसका कितना धंधा भी है। ओके। देखो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, मार्जिन, इक्विटी, सब चीज ऑटोमेटिक, फेस वैल्यू आई जाती है। तो आपके पास कितना सारा डेटा एक ही सेक्टर का एक बार आ गया कि नहीं? मेहनत करनी पड़ेगी, बरोबर। नहीं, और वो वो तो हो सेक्टर का जाएगा सर। सब डेटा आपके पास है। अब ये रॉ डेटा हुआ, ये सही नहीं है अभी। बरोबर। इसमें कुछ कंपनियों का कंसोलिडेटेड होगा, सबका नहीं होगा। बरोबर। इसका कंसोलिडेटेड होगा, जैसे आईसीसी सिक्योरिटीज है तो हो सकता है इनका कंसोलिडेटेड डेटा हो, क्योंकि इनका स्टॉक ब्रोकिंग से भी इनकम आता है, इनका फाइनेंस करते हैं, जब आप शेयर लेके खड़े रहते हो महीना तो उसपे ब्याज लगता है, उसकी भी इनकम है। इसके अलावा ये लोग आपको म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, उसकी भी इनकम है। ये लोग पर्सनल लोन भी सेल करते हैं, बरोबर। तो इनकी इनकम कंपाउंडेड होके आ रही है, राइट? ये लोग आईपीओ लाते हैं, तो कंसोलिडेटेड इनकम आईसीआईसी की होगी। पर आपको क्या लगता है जियोजीत की होगी? नहीं, कम चांसेस है। तो कम जो भी chances। कंपनियां यहाँ पे है सबकी कंसोलिडेटेड नहीं होगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भले 150 कंपनी है, नहीं एक सर, बार कर लेंगे वो। स्टैंडअलोन डेटा ले लिया, फिर जो टॉप की कंपनी है ना उनका कंसोलिडेटेड डेटा बरोबर। डालो अमरनाथ जी। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। हमें करना तो और सही दूसरा में सर, ये काम तीसरा क्वेरी, हाँ हाँ, राइट। नहीं इसीलिए तो आपके पास आए हैं। तो शुरुआत स्टैंड अलोन से होगी, लेकिन आप इसको कहते हैं एरर को सुधारना, राइट? तो आप अपने बरोबर। एरर को सुधारोगे कंसोलिडेटेड डेटा लिख के। डन? ओके सर। नेक्स्ट। और ये सर कभी कभी क्या होता है, इक्विटी कैपिटल नहीं मिलता है। जैसे नई कंपनी है यहाँ पे, तो उसका इक्विटी कैपिटल मुझे नहीं मिला, ढूंढा तो वो कैसे ढूंढना? ओके, इक्विटी कैपिटल नहीं मिलता है, कौन सी कंपनी है बोलो तो? ये एडलवेज है। फिर फाइनेंस सेक्टर में भी कुछ कंपनी का नहीं मिला है, और नई कंपनी सर आती है उसमें भी कुछ डेटा ही नहीं रहता है बीएसई में। देखो ये मैंने और सर एडलवेज इक्विटी ओपन कैपिटल और शेयर कैपिटल दोनों सेम रहता है? दोनों सेम है, दोनों सेम। ओके। अब देखो इन्होंने जो रिजल्ट देने का जो तरीका है ये अलग प्रकार से दिया है, देखा आपने? बरोबर, हाँ वो तो देख लिया। अब जब आपने इसको पीयर ग्रुप से उठाया तो यहाँ पे इक्विटी मिला आपको? नहीं मिला, नहीं। राइट? इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करके देखो, क्वार्टरली में। ओके। ये एनुअल, ये क्वार्टरली, क्वार्टरली में भी है? ओके। नहीं है। नहीं है, राइट? कभी कभी कोई कंपनियों में आपको क्वार्टरली में डेटा मिल जाएगा, तो इधर से ले लो, बरोबर। राइट?
अब ओके यहां से नहीं मिला है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेहनत किधर करो पता है? फाइनेंशियल्स में आ जाओ, रिजल्ट में आ जाओ, राइट। अब हम ये सितंबर 20 क्वार्टर ओपन करते हैं, लेटेस्ट जो आया ना क्वार्टर 2, मैं वही ओपन करता हूँ। बरोबर ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने जो डेटा दिए हैं ये क्वार्टर के डेटा दिए हैं, ये लेटेस्ट क्वार्टर, ये उसके आगे वाला क्वार्टर, राइट। बरोबर ये डेटा कौन से है? इसको कहते हैं फाइनेंशियल Standalone. स्टेटमेंट। मैं उम्मीद रखता हूँ आज जो बरोबर। वीडियो मैंने अपलोड किया था सुबह वो देखा होगा आपने, हाँ सर राइट। ये हाँ देख लिया पूरा। ये 3 वीडियो देखोगे ना, आपको ये पूरा सब पता चल हम्म। जाएगा कि कोई भी तकलीफ हो तो इसका सॉल्यूशन किधर से लाने का, राइट। ओके मैं सर यहाँ पे ओके सर डाउन स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को नहीं मिल हम्म। रहा है इक्विटी कितना है, लिखा है यहाँ पे कहीं पे नहीं बरोबर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल नहीं वो स्टेटमेंट हाँ, नहीं होगा। बरोबर लेकिन ये बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, इधर लिखा हाँ हुआ है बैलेंस शीट, उसको बैलेंस क्लिक शीट। किया मैंने। बरोबर ओके ओके, लेट इट ओपन, ये बैलेंस शीट खुल गया। अब ये बैलेंस शीट खुला तो बैलेंस शीट में वो डेटा दिया होगा। देखो बैलेंस शीट में 2 चीज होती है, एक एसेट्स, फिर आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। आई इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक लायबिलिटी राइट। तो मैं यहाँ पे इक्विटी के पोर्शन में देखूंगा, हाँ, दिख हाँ, रहा है इक्विटी आपको? बरोबर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल ओके हाँ 890। 9 अब ये मिलियन में है कि करोड़ में है? मिलियन, राइट। मतलब आपने जो 89 डेटा लिया है वो करोड़ में है। मिलियन में ही होगा सर नहीं, आपका डेटा करोड़ में है ये सब। बरोबर 1 मिनट, आपने मिलियन में लिया हुआ? नहीं, करोड़ में ही है ये इसीलिए सब डेटा, करोड़ में है, राइट। अब हाँ इसको वो सर मार्केट के में जो है ना एक फॉर्मूला मैंने चेंज किया कोई बात नहीं। एडलवेस का हमको इक्विटी लिखना था। अब मैं इधर आया और मैंने देखा कि 890 मिलियन यानी कितना करोड़ हुआ? कितना हुआ अमरनाथ जी? 89 करोड़ 89 करोड़ लिख देते इधर, 89 करोड़ हो गया। सर जस्ट टू इन्फॉर्म उनका टाइम हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम चिंतन भाई, थैंक यू। कितने शेयर हुए अमरनाथ जी? 89 करोड़। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमरनाथ जी, कि मेरे नेट में प्रॉब्लम है? नहीं सर उनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर इधर लॉग इन नहीं हूँ 89 ओके, या तो उधर 89 से करोड़ कुछ मैंने लिख प्रॉब्लम हो दिया, सकता है या आपका नंबर ऑफ शेयर भी नहीं यहाँ इधर पे से आ सर बोल रहा हूँ मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? इक्विटी कैसे बरोबर ढूंढना है? 89 करोड़ ऐसे ढूंढ पाओगे आप लोग? कहीं पे भी इक्विटी ना मिले हाँ तो? हो गया सर बाकी हाँ देखो हो आपको जाएगा और एक डेटा मिल गया है, तो ये हो ले ही जाएगा लेने सर का और अमरनाथ जी, आपको और एक डेटा मिल गया और वो है ओके ओके सर अदर इक्विटी। कौन सा डेटा? अदर इक्विटी। अदर इक्विटी यानी ओके क्या है? हाँ हाँ अदर इक्विटी हाँ मतलब बरोबर अदर इक्विटी यानी अदर इक्विटी में नहीं पता मतलब दूसरा बाहर से जो पैसा लाए नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इक्विटी यानी 89 करोड़ का टोटल निवेश है कंपनी में, स्टेक होल्डरों का ओके पैसा है। अदर इक्विटी यानी बरोबर 89 करोड़ तो है पैसा, पर हर साल प्रॉफिट किया, डिविडेंड बरोबर बांटा, फिर जो बचा वो कैश फ्लो किधर आया? बरोबर ऐड हुआ, राइट। तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट अदर से जो इक्विटी पैसा इकट्ठा ओके होता गया रिजर्व में, इसे रिजर्व कहते हैं, राइट। वो कंपनी के रिजर्व में जमा होता गया। तो बरोबर कंपनी के पास अभी कितना ओके पैसा पड़ा हुआ है? 3264 करोड़। बरोबर लिख दो इधर। अब आपको डेटा मिल गया है, देखो कल आप दूसरे वापस डेटा लाने वाले हो, बरोबर आपको चाहिए होगा ये डेटा। रिजर्व लिखा हुआ है आपने, तो हम इधर लिख देते हैं ताकि दूसरी बार मेहनत ना बरोबर करनी पड़े। हाँ हाँ 1 मिनट, लेट मी चेक कितना था? ओके 3264 3 हो गया, राइट। तो 3264 करोड़ डेटा, 3264 करोड़ एडलवेस का रिजर्व है। डन, ओके रिजर्व है या बरोबर ये भी हो गया। और कौन सा क्वेरी था? एक सर लास्ट जो था
हाँ, बस मार्केट कैप की फॉर्मूला जो मैंने लिखी है उसके हिसाब से मैंने ये कर लिया। डबल क्लिक करिए मार्केट क्लिक इस पे, मार्केट कैप पे। ओके ऐसा कर दिया है फॉर्मूला में तो आंसर आ जाता है। मैंने 10-15 का ये बीएससी पे ऐसे क्रॉस चेक किया तो सबका ओके परफेक्ट हो जाता है, तो ये बरोबर बराबर। है। आईसीसी सिक्योरिटीज का मार्केट कैप 15,000 करोड़ है, बराबर है। अभी हमने एडलवेज देखा, देखो एडलवेज का मार्केट कैप 7,000 करोड़ है, 7,000। इधर की एडलवेज। वो क्या है कि ज्यादा डिजिट दिख रहे थे ना तो फॉर्मूला कोई बात नहीं, अच्छा डिवाइडेड बाय किया 10-7 यूज कर लिया। बराबर है, अच्छा किया, अच्छा किया। ओके सर, हो गई सारी क्वेरीज। हाँ ओके, तो हम लोग ने सीखा यहाँ पे अमरनाथ जी कि हमको सब कंपनी ले लेने की है। हमने और एक चीज सीखा कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में कंसोलिडेटेड ही लेना है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कंसोलिडेट नहीं मिलने वाला है। तो बाकी जो पीछे वाली पूंछ वाली कंपनियां हैं जिनका हमें कोई काम नहीं है, उनका रहने दो, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड कुछ भी नहीं देखना है, पर टॉप की कंपनीज को कंसोलिडेटेड देखेंगे, राइट। एक और चीज इधर आप कर सकते हैं कि जब आपने ये सारी कंपनियों पे नजर लगाई तो आपको और एक चीज पता चलती है कि जैसे एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइस, आईआईएफएल, आईसीसी सिक्योरिटीज, ये सबका धंधा एक जैसा है। मोतीलाल, राइट, जियोजी, ये सब ब्रोकर है। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये लॉजिक्स है सब जो मैं कह रहा हूँ, ये कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। बरोबर। या आपको कोई ब्रोकिंग कंपनी में निवेश करना है, उठाओ सब ब्रोकिंग कंपनियां, डेटा तो है आपके पास, अब रिसर्च करो सबसे बढ़िया ब्रोकर को, राइट। आपको रिसर्च डूइंग कंपनी चाहिए तो देखो क्रिसिल है, राइट, इकरा है, फिर और एक थी, क्या नाम है उसका, क्रिसिल, इकरा, क्रिसिल और केयर, ये दोनों तो सर पता था। केयर है, बराबर की नहीं? तो ये केयर। तीन को कंपेयर करके आपको रिसर्च की कंपनी पता चल जाती है। ये लिखा फाइनेंस है, सेक्टर का नाम क्या है? ये रेटिंग एजेंसी हो जाएगी। हाँ, सेक्टर का नाम अदर फाइनेंशियल सर्विस है, पर आने वाले टाइम में ये सेक्टर नहीं सर, स्प्लिट हो हो जाएगा। जाएगा। आने वाले टाइम में 3 साल बाद आप देखोगे तो सेक्टर स्प्लिट ही होने वाला है, बराबर है। तो हम अभी से तैयार करके रखें। या हम लोग अभी से तैयारी करें। ये कैम्स है, तो कैम्स फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नो, तो कैम्स फाइनेंशियल टेक्नो में आप डाल सकते हो, बराबर है। बरोबर ओके, तो हो जाएगा सर, नेक्स्ट मंगलवार तक सारा हो जाएगा। राइट राइट, चलिए बढ़िया अमरनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़े। या इंद्रजीत आर पड़ियार, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको दीपक शेलके को वापस चेक करना पड़ेगा। क्या दीपक भाई आ गए हैं वापस? क्योंकि हमारी बात अधूरी रह गई थी दीपक भाई से। यस दीपक भाई, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है दीपक भाई आपका। जी सर, जी सर। ओके, कौन से सेक्टर पे बात करेंगे दीपक भाई? पीयूसी, हेलो या हेलो, यस प्लीज। पीयूसी बैंक, पीयूसी बैंक्स, पीएससी बैंक्स, ओके। या ओके ओके, हाँ। एक मिनट, पीएससी बैंक्स, चलिए बताइए क्या कहना चाहोगे पीएससी बैंक में? सर इसमें एसबीआई का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है और सेल्स भी उनका सबसे ज्यादा है और प्रॉफिट भी उनका सबसे ज्यादा है। तो पीयूसी बैंक में तो लीडर तो एसबीआई बैंक ही लगती है और उनका नेट प्रॉफिट भी सबसे अच्छा है, 5%। ओके, तो लीडर तो ये इधर तो एसबीआई भी लगता है। और सर एक था कि मैंने ना ये पीयूसी बैंक है ना, निफ्टी 50 ना उसमें से लिए। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, जो मेरे को एक क्यूरी आ रही थी कि पीयूसी बैंक कैसे सिलेक्ट करे या प्राइवेट बैंक कैसे सिलेक्ट करे। तो मैंने क्या किया, एनएससी इंडिया पे जाके ना पीयूसी बैंक इंडेक्स है ना उसमें से वो देख के इसका रिसर्च किया। और प्राइवेट बैंक का भी मैंने रिसर्च किया है, बराबर। वो भी निफ्टी 50 का जो कंपनी है ना उनका रिसर्च किया है। और स्मॉल फाइनेंस का अभी नहीं किया, तो करेंगे बाद में। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वो किसी सेक्टर पीयूसी है या प्राइवेट बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जैसे
पीछे डेक्सन एक कंपनी थी, वो अलग सेक्टर में जाती थी, तो उसको चॉइस कौन से सेक्टर में काम करे, वो कैसे ये ढूंढने का, मैं बोले तो स्मॉल फाइनेंस में है या प्राइवेट बैंक में है या पीयूसी बैंक है, तो उसको गूगल पे ऐसे लिख लिख के आएगा क्या, कोई और तरीका है क्या, उसका ये देखना पड़ेगा वो कैसे धंधा कर रही है, मैं प्रॉपर बिजनेस क्या है। देखो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपके पास ये 3 सेक्टर है, इसमें सबसे बढ़िया ग्रोथ कौन करेगा, क्योंकि जिसका सबसे बढ़िया ग्रोथ होगा यानी जिसका सबसे ज्यादा धंधा बढ़ेगा, उसकी प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आपने जो पैसे लगाए वो बढ़ेंगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? ग्रोथ, बराबर है। दूसरी प्रायोरिटी है क्वालिटी, तो वो कंपनियां क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब जैसे अभी आप गवर्नमेंट बैंक देख रहे हो, तो गवर्नमेंट बैंक में ग्रोथ नहीं है क्या? जब आपने ग्रोथ डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढी थी, तब आपने क्या देखा था कि प्राइवेट बैंक 20% से बढ़ रहे हैं, प्राइवेट बैंक के धंधे 20% से ग्रोथ हो रहे हैं, और गवर्नमेंट बैंक के धंधे कितने परसेंटेज से बढ़ रहे थे दीपक भाई? शायद 4-5% से, 6 मतलब कम हाँ, ग्रोथ है। तो सीधी बात है कि और अगर प्राइवेट बैंक का ग्रोथ गवर्नमेंट से ज्यादा है, तो उनके धंधे ज्यादा बढ़ेंगे, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे, पैसा वहीं पे बनना है, बराबर है। अभी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो वहां पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट, प्रोवाइडेड क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब कि वो कंपनियां कंसिस्टेंट नहीं हुई, कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती है, तो रिस्क है। पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो भी है, सब बैंक प्रॉफिट अच्छा कर रही है, मार्जिन अच्छे है, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर सकते हो, बराबर की नहीं? गवर्नमेंट बैंक का जो सेक्टर है वो हाईली रिस्की है। कैसे पता चल रहा है? एक तो ग्रोथ कुछ भी नहीं है, कम ग्रोथ है। दूसरा, ये क्या है सब दिख रहा है आपको? हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसको मैं अगर एवरेज करूं, सबका कितना हुआ? -70%। -7.5%। यानी कि एवरेज गवर्नमेंट बैंक कुछ कमा ही नहीं रही है। आपने जब इन सबका टोटल किया, तो देखो कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली दीपक भाई आपको, कि गवर्नमेंट बैंक मिलके 6 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, पर पैसा तो कमाती नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ पिछले साल। माइनस यानी इनके स्टेक होल्डर कौन है, किसकी है ये सब गवर्नमेंट बैंक? सरकार की है ना। तो सरकार ने पिछले साल कितना मुनाफा जी सर, किया? सरकार ने मुनाफा कितना किया पिछले साल? वो तो माइनस में, तो सरकार को कुछ मिला ही नहीं, 5,000 माइनस करोड़ में का ही लॉस हो गया। उल्टा इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया डाला हुआ है सरकार ने अब तक गवर्नमेंट बैंक्स में, पर 50,000 करोड़ डालने के बाद इनको 50,000 करोड़ हर साल का मिलना चाहिए प्रॉफिट, और 6 लाख करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से 50-60 हजार करोड़ का तो प्रॉफिट बनता ही है। पर क्यों नहीं कर पा रहे? उसके बहुत से कारण हैं जो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। वैसे भी हकीकत यह है कि मुनाफा नहीं मिला, राइट, तो मार्जिन बहुत कम है। तो आपके प्रायोरिटी में गवर्नमेंट बैंक वैसे भी नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी में क्या होनी चाहिए? प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर भी दीपक भाई, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं एक आधी गवर्नमेंट बैंक में पैसा डालना है, तो इसमें सबसे पहली चॉइस क्या होनी चाहिए? एसबीआई। एसबीआई, जो धंधा करती है, प्रॉफिट करती है, और उसी के मार्जिन सबसे अच्छे हैं, बराबर ना। आप आईयूबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक क्यों जाए जबकि ये सब लॉस कर रही है? वाई? लेना है तो फिर एसबीआई लो, राइट? जी ओके सर, दीपक भाई। सर एक ये क्यूरी थी कि वो स्मॉल फाइनेंस या प्राइवेट बैंक में है या कोई में बैंक, तो कैसे ढूंढने का, कैसे पता चलेगा कि ये सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में या स्मॉल फाइनेंस में? जैसे पीछे डेक्सन कंपनी थी, डेक्सन, तो वो अलग सेक्टर होता था, जैसे पेंट पेंट में सिरेमिक बराबर है। हो या एशियन पेंट हो, सिरेमिक तो गाजर या सिरेमिक में आता है, और बराबर है। एशियन पेंट पेंट में आता है। और कैसे कैसे पता बिजनेस देख के करना चाहिए क्या, कैसे
कैसे देखो पता चलेगा? अभी जैसा मेरा अमरनाथ जी से बात हुआ कि भाई आपके फाइनेंस में तो 150 कंपनियां है, अदर फाइनेंस सेक्टर, ये फाइनेंस की कंपनियां नहीं है, उसको कहते हैं अदर फाइनेंस, राइट? तो अदर फाइनेंस मतलब फाइनेंस में भी बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत अलग अलग पार्ट है। तो कंपनियों देख के आपको धीमे धीमे अंदाज आना चाहिए कि ये कंपनियां क्या कर रही है, इनके धंधे क्या है, राइट? स्टॉक ब्रोकिंग की है तो स्टॉक ब्रोकिंग के साथ रखो, बराबर है? उनको धंधों के हिसाब से आप बाइफरगेट कर सकते हो। ये चीज धीमे धीमे सीखेंगे, ये चीज इमीडिएटली नहीं पता चलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। पर जब आप सारी कंपनियों के रिजल्ट स्टडी करोगे तो धीमे धीमे आपको पता चल जाएगा कि किसका कैसा बिहेवियर है, बराबर? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ ना दीपक भाई? इमीडिएट नहीं पता चलेगा। ओके या तो चलिए, मैं इतना समझ गया आपके सेक्टर से कि आपने जो सेक्टर पे रिसर्च किया, ये सेक्टर की सारी कंपनी लॉस कर रही है एक दो को छोड़ के, तो फिर भी ये सेक्टर अच्छा तो है ही नहीं, पर फिर भी निवेश करना है तो एसबीआई हमारी पहली चॉइस है, बराबर है? और रिसर्च आधा है, ये पूरा रिसर्च नहीं है। नेक्स्ट वीक जब पूरा रिसर्च करेंगे तब हमारी आइडिया और क्लियर होगी। डन? तो चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से हम बात करते हैं। उससे पहले अभी एक मैसेज किसी का आया था, जस्ट लेट मी चेक। नितेश जी लिख रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है नितेश भाई आपको स्क्रीन? यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम नितेश है, I'm रेशमा डेरिया। या रेशमा मैडम, तो स्क्रीन नहीं दिख रही? सर आपका फेस दिख रहा है, पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे ना वो नहीं दिख रहा था सर। आप मोबाइल में हो कि लैपटॉप में हो भी? लैपटॉप पे। अच्छा, हाँ, मुझे आपका फेस दिख रहा है, पर जो कंप्यूटर पे आप जो दिखा रहे थे ना सर वो नहीं दिख रहा था। अभी भी दिख रहा नहीं है? दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है मैडम? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके ओके या एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए मैडम, ओके आपका सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, आई विल डू दैट। ओके यस यस और मैडम जब आप वापस लॉग इन करते हो ना, यस फिर सर, एक व्यू करके एक आता है, व्यू यस दिख रहा है सर, आपको? कि आपको yes, sir. कैसा व्यू चाहिए? जो करेक्ट, बोल रहा है उन्हीं का चेहरा दिखे और स्क्रीन चाहिए, राइट? राइट सर। वो व्यू थोड़ा सेटअप करने का प्रयास करना, हो उसमें जाना चाहिए। सर उसमें स्टैंडर्ड मोड रखने का। सर मेरा हाँ। स्टैंडर्ड मोड ही है सर। अच्छा, या यस, एप्पल है चिंतन भाई? एप्पल? नहीं सर, एचपी एचपी। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ये तो। नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। हाँ, वो एक बार शायद लॉग आउट लॉग कर आउट करो। देंगे तो हो जाएगा। ओके सर, आई विल डू दैट, थैंक यू। ओके थैंक यू। या ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। और फिर भी रेशमा मैडम अगर प्रॉब्लम आता है तो स्क्रीनशॉट एक आप फाल्गुन भैया किसी को भेज दीजिएगा, थोड़ा हम भी देखें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, राइट? सो नाउ मैडम सर उन्होंने लॉग आउट कर दिया तो वो आपको अरे सुन नहीं पाएंगे। सुनाई देगा। ओके ओके या। और चिंतन भाई आप जो कह रहे हो वो बोलते जाना है ना, उससे हेल्प मिल रही है मेरे को, हाँ ताकि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? नहीं, कहाँ पे लिख रहे हो? नहीं चिंतन भाई ये नहीं दिखता है। ओके, टाइम इज अप लिखा वो? यस राइट, हाँ 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 हाँ, पर वो पहले लिखा था आपने? हाँ लिखा था एक बार। अच्छा, ध्यान नहीं आया लेकिन वहां पे अभी बातचीत मैं कर बीच रहे में थे ना, वो दूंगा। सेक्टर डेटा स्टडी कर हाँ रहे थे। ठीक है, या मैं बीच में नहीं बोलूंगा, ये लिख दूंगा तो इजी पड़ेगा सर। हाँ ओके, और बोलोगे तो भी दिक्कत नहीं चिंतन भाई, तुरंत स्ट्राइक हो जाता है ना? ओके ओके ओके, सो लेट अस टॉक विद मिस्टर इंद्रजीत पड़िया। इंद्रजीत जी, यस, आर यू ऑनलाइन? हेलो, यस सर। कैसे हो इंद्रजीत भाई? बस अच्छे है सर। बस लास्ट टाइम का तो बाकी था होमवर्क आपका, इस बार अभी कैसा बाकी है? है, हाँ, अभी बाकी है अरे क्या बात है इंद्रजीत भाई, ऐसा एकदम क्यों? सर। बहुत स्लो थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है उसमें कोई मेरा। बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। वो तो देखो हमने वो कहानी सुनी है ना, वो कछुआ और रैबिट वाली। नहीं वो करना तो है सर 100%। बराबर, लेकिन स्लो चलो लेकिन हाँ, चलो। इंडस्ट्री बराबर, ग्रोथ वाला मैंने मेरा आपने दिया था ना लेसन, वो मैं हाँ, कर दिया है मेरे वेरी गुड, में। बराबर, वेरी लेकिन मैं अब वो पीछे रह गया ना 2 वीक, तो मैं कवर कर लूंगा सर आपको। ओके ओके। और लेकिन वो अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ अभी अभी जो चैप्टर कर रहे हैं ना, अभी वो चैप्टर में रहना, नहीं तो क्या होगा पता है, ये सब रह जाएगा सर, वही और प्रॉब्लम आपको हो रहा है। खाली पूरा ना सीखोगे। ऐसा मत करो, अभी जो चला गया
जाने दो, वो वापस रिपीट कर लेंगे। हम बीच में एक आध हफ्ता आराम भी करेंगे, तो ऐसा है। आराम वाले समय पे क्या कर लेना, जो चीज मिस हो गई है उसको हम खत्म करेंगे, बराबर बराबर, सर, कंटिन्यू नहीं चलेंगे, एक रेस्ट ओके। वाला वीक लाएंगे हम बीच में, बराबर, राइट। पर अभी अभी का करना है ना। हाँ तो ये जो सेक्टर है आपके, ऑटो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर जिसमें आपका आएगा डिक्सन जैसी कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बहुत बड़े काम की है, ऐसे ऐसे है। अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जिसमें हेवल जैसी कंपनी आती है, बढ़िया काम की है। तो मैं चाहूंगा आप इसका रिसर्च थोड़ा परफेक्ट करें, और नेक्स्ट वीक और अपडेट्स आएंगे तो अब परफेक्ट रिसर्च वो ही हो जाएगा, राइट सर। ओके, ओके, नो नीड टू वरी। हेलो यस, हेलो सर, मैं अगर मुझे क्वेरी है, मैं फोन पे कॉल करूँ तो किसको कर सकता हूँ, आपको करूँ या किसी? देखो आपको जब भी कोई क्वेरी हो तो हाँ। जैसा अमरनाथ जी ने अपने सेक्टर में लिखा था, मैं आप लोगों के वैसे भी होमवर्क रोज चेक करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, राइट। बराबर, तो आप अपने कॉलम में लिखोगे तो मेरे तक बात पहुंच जाती है। दूसरी जगह ये है, ये दिख रही है यहाँ पे, हाँ ओपन कमेंट हिस्ट्री, ओके, अपने बॉक्स अपनी जगह पे जाने का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जयश्री मैडम के सेक्टर में हूं, मान लीजिए जयश्री मैडम को कोई क्वेरी है यहाँ पे कुछ चीज में, तो क्या हाँ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अगर वो कमेंट लिखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे ओके, कमेंट, बराबर, तो ये कमेंट पहुंच जाता है हम तक, और मुझे सही, ध्यान रहता है कि चलो ये कमेंट है। जैसे यहाँ सुधांशु जी का आप देख रहे हो कि उन्होंने कमेंट पूछा भी था और उसको हमने रिजोल्व भी कर दिया, सही, उनको वापस हमने रिप्लाई भी दे दिया कि सुधांशु जी ये ऐसा है यहाँ पे, राइट। बराबर, तो ये एक अच्छी जगह है कमेंट लिखने की, ओके। बराबर है। फिर भी आपको लगता है नहीं पता चल रहा है, आप किसके कांटेक्ट में हो अभी, प्रसाद, प्रियंका, प्रसाद सर, प्रसाद भाई, पता है ना, उसको कॉल कर देने का, उसका भी कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। पर क्या होगा, आप कॉल करोगे, हो सकता है बहुत बार बिजी आ रहा हो, बंद आ रहा हो, यहाँ लिख दोगे तो भी चलेगा, कॉल कर दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, राइट। ओके सर, या थैंक यू। ओके इंद्रजीत भाई, सो लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, स्तुति कपूर। यस, स्तुति मैडम, लेट मी चेक। Okay, Stuti madam, are you there right now online? Okay, thank you, Reshma madam, for your update. Yeah, if Stuti Kapoor, you are there, Sir, I then think she is not online today. okay, not online, no problem. We will मैडम ने take एक दो next क्वेरी time. भी पूछी थी, तो वो होमवर्क तो कर ही रहे। आपके पास मैडम बहुत ही बढ़िया लर्निंग के सेक्टर है, होटल्स। हमें पता रहना चाहिए होटल में कौन कैसा कर रहा है, जस्ट फॉर अवर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल एकदम पावरफुल सेक्टर है, ये जमाने का सेक्टर है। आप सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो तो इसके रिलेटेड तो कंपनियां बढ़ेगी। इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज अगेन पावरफुल सेक्टर, राइट, एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये तीन सेक्टर जो पहले के हैं, उसमें दूसरे दो, इंटरनेट कैटलॉग और इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ये दोनों ये जमाने की डिमांडिंग और इमर्जिंग सेक्टर्स है। वी नीड टू डू रिसर्च ऑन दिस। Okay, it seems there is some message. Let me check. आवाज नहीं आ रहा है। Sir, you can start now. बीच में आवाज चला गया था आपका। Yes, अभी yes. now it is normal. Right. Okay. So Jayashree madam, if you are online, yeah, I can see you. Madam, kindly unmute yourself so that we can discuss your sector. मैं चाहूंगा 4 मिनट है आपके पास, 4 सेक्टर, एडवर्टाइजिंग मीडिया, ऑटो टायर्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आप जो सेक्टर पे कहो उस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैडम। हाँ So which sector we will discuss?
नहीं, पहले तो मुझे एक दो क्वेरी है। यस प्लीज। ये जो सेक्टर्स कर रहे थे उसमें कुछ कुछ कंपनियां जो है वो बीएससी में है लिस्टेड, तो उसका हाँ तो मैंने नहीं लिया है, तो इज इट बराबर। ओके और नॉट, आई डोंट नो। वो पिछले हिसाब से मैंने वो लिया नहीं है अभी इसकी स्टडी में। और दूसरी क्वेरी है जो मैडम नहीं वापस रिपीट करो ना मैडम, मैं समझा नहीं। जो मार्केट कैप के लिए हम ओके फॉर्मूला डाल रहे थे, तो जो राइट राइट। BSE में लिस्टेड है उसका मैंने नहीं लिया, वो कंपनी नहीं मैंने लिया। डिलीट कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों लेकिन ऐसा किया मैडम आपने? वो डिलीट किया? उसका मार्केट कैप नीचे होगा इसलिए मैंने लिया नहीं एक्चुअली वो। नहीं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है कि जो हाँ कंपनियां कुछ पैसे बचाने के लिए अगर हाँ बीएससी पे कोई एक ही जगह पे लिस्टिंग रख रही है तो ये प्रॉपर नहीं है। हाँ एनएससी हाँ हाँ। बीएससी दो बड़े एक्सचेंजेस हैं, आपकी अच्छा कंपनी बीएससी एनएससी दोनों पे होनी चाहिए, हाँ बराबर की नहीं? या तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर अच्छा अवर अंडरस्टैंडिंग, सब अच्छा कंपनी होगी तो हमें सीखने को ज्यादा अच्छा मिलेगा, अच्छा 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 राइट? तो अगर रखोगे तो वो अच्छा रहेगा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो अभी तो जयश्री मैडम मैं कह रहा हूँ कि इट्स हाँ ऑल राइट, बीएससी में जो नहीं है वो कंपनी को नहीं लिया तो भी चलेगा, राइट? अच्छा लेकिन लेके देखो तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस सही बात है, दोनों एक्सचेंज में कंपनी हो उन्हीं पे ध्यान दो, बराबर है? अच्छा अच्छा, तो ओके। दोनों लेना चाहिए। हाँ दोनों ले लेने का, फॉर ओके रिसर्च ओनली, राइट? अच्छा अच्छा, और वो दूसरा क्वेरी है जो पीयर ग्रुप में हम वो 1 2 3 करते हैं, हाँ हाँ, तो वो किसके हिसाब से होता है, यानी उसका बेस क्या, ऑन व्हाट बेसिस द नंबरिंग इज मार्केट गिवन? कैप मैडम, वो मार्केट कैप के हिसाब से नंबरिंग होता है, अच्छा राइट? कुछ कंपनी में आप देखोगे कि मार्केट कैप के हिसाब से नहीं होगा, कुछ कंपनी में आपको अच्छा लगेगा कि ये मार्केट कैप के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये ओके ट्रेल मार्केट कैप गिना जाता है। ट्रेल मार्केट कैप मतलब पिछले 4 क्वार्टर का ट्रेल गिनते हैं। तो हो सकता है कोई 2-3 सेक्टर ऐसे हो जहां पे मार्केट कैप की कोई और कंपनी है वो नंबर 2 में है, राइट? पर दूसरी कोई कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि मार्केट कैप चेंज हुआ होगा, ये तो डायनेमिक है। हाँ हाँ बराबर है। बाकी वो 1 2 3 4 के नंबर मार्केट कैप के, अच्छा 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 ओके राइट? अच्छा, ओके। अभी तो जो ग्रुप किए हैं फिर उसमें थोड़े थोड़े कम है, वो कंपनी कोई पूरे तो नहीं लिए हैं मैंने। कोई बात नहीं, फिर भी हम हाँ रिसर्च कर लेते, एक बार देख लेते कि कहाँ तक काम हुआ है, बराबर हाँ ना? ओके। कौन सा सेक्टर ओपन करूं मैं? ऑटो टायर्स। ओके, आपने अच्छा किया ऑटो टायर सेक्टर सिलेक्ट किया। हाँ, तो आज ही मैंने वो कुछ तो भी पढ़ा वो ग्रुप पे, तो इसलिए नहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है मैडम, अगर ऐसे अच्छा टायर आते हैं तो बनाएगा कौन? प्लांट भी तो होने बराबर चाहिए, है। ऐसे टायर अपनी कंपनियां बनाएगी, बालकृष्ण जैसी, हाँ 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 एमआरएफ जैसी सब कंपनियां टायर की है, तो वो भी तो हमने वीडियो देखा है, उन्होंने तो ये प्लांट भी देख लिया होगा, वो तो उन्होंने कितने पैसे डाले, राइट? अच्छा क्रोर्स हाँ ऑफ हाँ रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो तो अच्छा रिसर्च कर ही रहे, बराबर ना? अच्छा 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 सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, या अशोक भाई। यस अशोक सर भाई। आज हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था हाँ ये हाँ टायर के रिलेटेड कि हाँ चाइना ने वो ट्यूबलेस टायर बनाए हैं और इसके इम्पैक्ट टायर कंपनी पे आ रहे हैं। हाँ लेकिन सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा हाँ कि जैसे कि हमें मालूम है कि बालकृष्ण इज बेस्ट इन दिस इंडस्ट्रीज एंड दिस ग्रुप, ठीक है? तो अभी जो ये इम्पैक्ट आता है और हमें लास्ट टाइम हमने जो किया उसमें भी आएगा कि 15% का ग्रोथ उसने किया था क्वार्टर में H1 में, तो क्या इससे अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए उस इम्पैक्ट का कि चाइना जो ये डंपिंग करेगा, ये टायर बनाएगा, तो इसकी इफेक्ट इस कंपनी पे आएगी या नहीं आएगी? लेकिन देखो जब तक हम जब सीखे हैं उसके रीजन से मुझे ये लगा, मैंने ग्रुप में डाला भी था मैसेज कि भाई ये जो है ये अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। लोग र्यूमर फैलाएंगे कि ऐसे ऐसा आएगा, लेकिन नहीं अगर देखो, ये आ भी रूमर गए भी नहीं है अशोक नहीं, भाई, बराबर ना? ये वो एक हकीकत भी तो हाँ जी सर, है कि तो नहीं? क्या, तो हमें दोनों तरीके अलर्ट से होना लो चाहिए, इसको। देखो हमें इस अलर्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना। हमें अलर्ट तो रहना ही चाहिए कि अपडेट्स क्या आ रहे हैं,
क्योंकि नोकिया मोबाइल बनाता था, राजा था, जी सर, बाहर फेंका गया। वो स्मार्टफोन सर। उन्होंने डेवलप नहीं किया, स्मार्टफोन की कंपनियां आई और नोकिया आउट ऑफ बिजनेस हो गया। ओके बराबर सर, कि नहीं? कैमरे में यही यस हुआ। कौन सा या कंपनी था? कोडैक, कोनिका, कोडाक, या कोडैक। तो यस यस, मोबाइल फोन में वो आने लगे कैमरास, ओके वो आउट ओके ऑफ ओके मार्केट हो गए। तो कुछ ना कुछ ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, पर ऐसे जी सर, हजारों चेंज आते हैं, उसमें कुछ 2-3 चेंजेस की वजह से हजारों में से कुछ चेंजेस जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। पर ये भी रातों रात नहीं होता है। ना हाँ बस रातों मैं रात वही नोकिया वही घर सोच गया रहा था, हूँ। हाँ ना हाँ हाँ, रातों रात कोडक घर गया है। या बराबर है? क्योंकि सर वो आएंगे, बाजार में आएंगे, लोग उसको यूज टू करेंगे, उससे पहले तो हम अलर्ट हो जाएंगे दूसरे तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट से कि भाई हमारी कंपनी में इसका इम्पैक्ट आ रहा है हाँ, कि नहीं आ रहा है, तो आपको राइट डेटा ना से सर? तो पता चलेगा ही। हाँ डेटा तो है राइट ही सर, ना सबसे आगे। जी सर। तो क्या हमें अभी अभी अगर अभी मैं क्या नया इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे हाँ, बालकृष्ण में इन्वेस्ट करने से थोड़ा रुकना चाहिए या? नहीं नहीं नहीं, करना ही चाहिए। मैंने किया है पिछले महीने। हाँ हाँ, बस बस तो मुझे बराबर सिर्फ ना? ये क्वेरी थी, और ये ग्रुप में जो आया था तो मुझे लगा कि इसको जरा इस मीटिंग में पूछ लूं, तो सबको मेरे साथ सबकी थोड़ी क्वेरी ये हो, वीडियो डाउट हो। मैंने भी बरसों पहले भी देखा था। जी सर, जी सर। तो ऐसे तो कई चीजें आएगी। जब तक बराबर ना? ये बाजार में सर हर हर हम हर 100 गाड़ी में से 10 गाड़ी में जब तक ये देखे नहीं, तब तक हमें नहीं लगना चाहिए कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो नहीं मार्केट नहीं, में वो आ गया जाने है। दो। जी आपको सर, आपके सेल्स डेटा से पता चल जाएगा। ओके सर, यस यस यस, सबसे जो भी पहली चीज सेल्स डेटा से कि ये सेल्स पे राइट सर, इफेक्ट करता है, तो आपको पता यस चल ही गया। बराबर यस ना? यस सर, यस यस अभी अभी जो हाइब्रिड गाड़ियां है, आप देख रहे हो, एमजी, यस, किया, इनके सेल्स या जबरदस्त बढ़ रहे हैं ना? यस 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 सर, तो क्लियर, इसमें दो राय नहीं है कि हम अगर अपनी कंपनियां खाली पेट्रोल डीजल वाली रहेगी तो ये सब कंपनियां ओवरटेक करके निकल जाएगी। यस यस सर, बराबर कि नहीं? सेल्स तो उनके बढ़ रहे हैं। पैसेंजर कार का जो धंधा बढ़ा है वो उन्होंने ज्यादा बढ़ाया है यस अपनी यस, गाड़ियों से। राइट? तो अपनी ये सर, कंपनियों की भी प्लान में है, पर वो कब यस, लॉन्च करे, क्या करे। ये सर कॉमन था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट राइट? करके हमारे पास पूछा है कोई कि चॉइस नहीं दूसरी इन्वेस्ट करने की, हम्म, तो हम नहीं कर सकते। जी बराबर? सर, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, चलिए, थैंक थैंक यू वेरी मच। और यू, यस, हम जयश्री मैडम से बातचीत कर रहे थे। या जयश्री मैडम, आप क्या कहना चाहोगे आपके इस पूरे सेक्टर में? या जयश्री राणे? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए सर। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर अगर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। आई विल डिस्कस समथिंग ऑन दिस टायर इंडस्ट्री। देखो, मेरी ये फेवरेट इसलिए क्योंकि 10 साल पहले मैंने यही शीट बनाई थी, इसी प्रकार से मैं चेक करता था सब। मेरे को उस समय भी यही मिली। ये दिख रही है आपको सबसे तगड़ा मार्जिन किसका है? एक चीज मैं समझ गया कि धंधा कौन कर रहा है सबसे ज्यादा। देखो, दिख रहा है आपको, एमआरएफ, अपोलो, ये दो कंपनियां हैं जो धंधे की राजा है। राइट? बिजनेस सबसे तगड़ा ये लोग कर रहे हैं। तो एमआरएफ अपोलो में कांटे की टक्कर है। एमआरएफ इज नंबर 1 कंपनी। अगर मुझे टायर में निवेश करना है तो एमआरएफ अपोलो धंधा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं मार्जिन पे जब आता हूं तो मार्जिन किसका सबसे बढ़िया है? ये कौन है? 20% वाला, बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो ये आज से नहीं है, मैंने 2010 में देखा तब भी था, आज भी बालकृष्ण के मार्जिन इनसे सबसे ज्यादा है। मैंने जब 2010 में देखा तब बालकृष्ण के मार्जिन 9% थे, एमआरएफ के 4% थे, और ये बाकी की सब कंपनियां लॉस करती थी। अच्छा प्रॉफिट कर रही है। तो बालकृष्ण के मार्जिन 9% से 19% हो गए, एमआरएफ 4 से 8 हो गए। पर अभी भी बढ़िया कौन रहा? बालकृष्ण इज हैविंग वेरी गुड मार्जिन, डेब्ट फ्री कंपनी। बाकी कंपनियों पे डेब्ट है। तो मैंने उस समय बालकृष्ण में निवेश किया और बालकृष्ण ने एमआरएफ से ज्यादा पैसा कमा के दिया। ये एक हकीकत है पिछले 10 साल की। राइट? लेकिन आप एमआरएफ में भी डाल सकते हो, क्योंकि देखो इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। बालकृष्ण जो फील्ड में है उनका इतना बड़ा मार्केट नहीं है, वो कम धंधा कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का धंधा है। बराबर कि नहीं? तो बालकृष्ण की नेगेटिविटी भी है। अगर हम बालकृष्ण में डालेंगे तो हमें लिमिटेड पैसे डालने पड़ेंगे। राइट? पर यहाँ पे एमआरएफ जो है वो भी सोना नहीं है, ऐसा नहीं कि सबसे बढ़िया है। यहाँ पे भी डेब्ट है, कुछ मार्जिन इनके कम है, तो आप
दोनों कंपनियों में कहीं भी डालो, आपको 2-3% ही पैसा डालना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अभी भी रिसर्च अधूरा है। नेक्स्ट वीक आप इसके डेप्थ पेइंग कैपेसिटी और कुछ चीजों पे और आगे आप बात करोगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच जयश्री मैडम। लेट मी मूव फर्दर। या जयश्री मैडम, मृदु मलिक, लेट मी चेक मृदु मैडम इज देयर ऑनलाइन, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं मृदु मैडम को आज। ओके, आई थिंक मृदु मैडम इज नॉट ऑनलाइन। मृदु मैडम के पास नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्लास्टिक प्रोडक्ट और टेलीकॉम केबल सेक्टर है। काइंडली चेक इट। या मुकेश मिश्रा जी, या मुकेश मिश्रा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। या नमस्कार, कैसे हो मुकेश भाई? बस बिल्कुल ठीक सर। या आपने लास्ट टाइम भी यहीं पे चारों सेक्टर डाले थे राइट साइड तरफ, इस बार भी ऐसा किया है राइट? क्यों आपने यहाँ अलग लिखते हो हर बार, कोई खास कारण उसका? नहीं, कोई खास कारण नहीं है। आपने जब मेरे को वीडियो दिया था, देखा था, तो वीडियो में आपने कहा था इसको इस तरह से अटैच कर दिया करें तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने में लगा दिया। ओके, पर ये यहाँ पे भी अटैच कर पाओगे? जैसे एयरलाइन है तो एयरलाइन कोई राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करके क्यों कर पाओगे, तो अलग लिखना नहीं पड़ेगा। ये किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है राइट? या ओके, तो मिश्रा जी आपके 4 जो सेक्टर है, एयरलाइन, ब्रॉडकास्ट, केबल, फॉरेस्ट और अदर एपरल, चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, चारों पे बात होनी चाहिए, पर हम नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा एक सेक्टर लेंगे मिश्रा जी? चारों सेक्टर के अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मुझे मिले नहीं। एयरलाइंस में इंडिगो के अलावा कोई नहीं दिखा, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जील और सन टीवी के अलावा कुछ नहीं मिला, फॉरेस्ट के अंदर में सेंचुरी के अलावा कुछ नहीं मिला, और अदर में टाइटन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मुकेश भाई देखो, आपने पूरी चारों सेक्टर की कहानी बता दी राइट? यही कुछ कंपनियां हैं जिसपे मेरा भी आज से नहीं 10 साल से ध्यान है। एयरलाइन में इंडिगो पे ही ध्यान है, ब्रॉडकास्टिंग में जी पे नहीं है क्योंकि वो डेप बर्डन वाली कंपनी। या अभी आप नेक्स्ट चैप्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा। सन टीवी जरूर है, सबसे तगड़े मार्जिन है, तो ये सेक्टर में सन टीवी अच्छा है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जैसा आपने बताया सेंचुरी प्लाई इज बेस्ट, और अदर अप्रैल में आपने टाइटन बताया। लेट मी ओपन अदर अप्रैल। कितना बड़ा सेक्टर है, कितने सारे शेयर, बिल्कुल। तो यू हैव डन वेरी गुड वर्क। इतनी सारी कंपनियों को आपने कॉपी पेस्ट करके लाए, बहुत मेहनत हुई होगी राइट? लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आया? टाइटन। रिजल्ट टाइटन निकला, और एक थोड़ा सा अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है पेज इंडस्ट्रीज वालों का, उनका प्रोडक्ट। क्या मैं यही सुनना चाहता था मुकेश भाई कि क्यों आपको पेज नहीं मिला राइट? जी जी। जैसे मैं जब ये रिसर्च करता था ये सेक्टर पे, ये भी डिकेड पुरानी बात है, मेरे को यहाँ पे टाइटन उभर के बाहर आया और एक पेज, मैंने उस समय देखा कि पेज के मार्जिन जबरदस्त है। अभी कैसी डीमार्ट नई नई कंपनी आई थी, रूट आई, कैम्स आई, वैसे मेरे टाइम पे पेज का नया नया आईपीओ आया था। मैंने पुराने डेटा देखे, वाओ वंडरफुल डेटा, बढ़िया ग्रोथ, डेट फ्री कंपनी, जॉकी का नाम तो हम सबने सुना है, तो निवेश किया पेज में राइट? पर ये पता था वो सबसे बड़ी कंपनी नहीं है राइट? लेकिन देखो अच्छा फायदा हुआ, और अभी भी मेरा कोई विचार नहीं है पेज को सेल करने का, और मैं इसको इकट्ठा करता जाऊंगा बराबर। पर आपको कोई डाउट है कि टाइटन और पेज अच्छा है कि नहीं है? टाइटन अच्छा है, पेज अच्छा है। राजेश एक्सपोर्ट जो है वो बहुत भारी एक अपने आप में नजर आ रहा है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन वैभव ग्लोबल जो है वो पिछले कुछ टाइम में काफी फास्ट ग्रोथ आई है उसके अंदर में, वो बराबर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट हियर। ओके राइट, वैभव ग्लोबल, लेकिन प्रॉफिट 100 करोड़, धंधा 400 करोड़, मतलब इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अभी आप क्या करो मुकेश भाई, आपने ये सारे डेटा स्टैंड अलोन लिए होंगे बराबर ना? सब कॉपी पेस्ट है तो स्टैंड अलोन ही है, तो ये भी याद रखें कि ये एरर वाला डेटा है राइट? अब इनमें से कुछ कंपनियों के कंसोलिडेटेड डेटा होंगे, जैसे टाइटन के कंसोलिडेटेड होंगे। टाइटन के तो कितने अलग अलग धंधे हैं राइट? तो अब टाइटन का कंसोलिडेटेड चेक करो, राजेश एक्सपोर्ट, जो टॉप की जो कंपनियां उभर के बाहर आती है ना, उनके आप कंसोलिडेटेड डेटा देखो। ठीक है जी राइट? इससे क्या होगा, और डेटा में एरर फ्री डेटा आपका होता जाएगा
ओके जी, ओके। राइट। और फिर देखो क्या वैभव सही में 400 करोड़ कर रही है। वैभव एक्सपोर्टिंग की कंपनी है जी तो इनका धंधा 400 करोड़ नहीं होगा, इनका धंधा बहुत ज्यादा होगा। जी, हो सकती है वजह, या क्योंकि तो 2017 में ये 225 रुपए का होता था और आज 2100 रुपए का हो चुका है विद इन 3 इयर्स। तो वही होगा ना जो इतना प्राइस बढ़ा है मार्केट में। तो नहीं, पर वो मत देखो, मैंने पहले बोला कि घटिया कंपनियां भी 10 गुना होती है, क्योंकि वो जब गिरती है ना वो एक साल में 20 गुना कम हो जाती है। जी राइट। तो बढ़ने घटने से उनको मत नापना। अगर हम सही में बढ़ने घटने से नापेंगे तो हमें पूरा इतिहास देखना पड़ेगा कि वैभव ग्लोबल को जब मार पड़ती है, बुरा समय आता है, तो वो टूटने में ऐसा तो नहीं है कि टूटने में ये 2500 से 5 रुपए आ जाती है, 25 रुपए आ जाती है, तो बहुत रिस्क है। हमें कैसी कंपनियां चाहिए पता है कि जब टूटने का समय आए तब भी लिमिटेड टूटे। जी जी। लिमिटेड मतलब कितना होता है मुकेश भाई? 50% से कम। 50% टूटे, आधा होगा वो नॉर्मल है, उतना तो हम पहले से प्रिपेयर है। पर आधे का आधे का आधे का आधा होगा तो नहीं चलेगा, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। बराबर। ये अपना 38% तक आई थी, फिबोनाची का देखा था मैंने एक रोज, तो 30% को टच करके गई है ये। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम। अभी और जब डेटा हम इसके डालेंगे ना डेप्थ के, राइट, हम इसकी डेप्थिंग कैपेसिटी चेक करेंगे, वो सारे डेटा के बाद प्रॉपर डिसीजन पे आएंगे कि इनमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। बराबर है। अभी के हिसाब से टाइटन, पेज, दिस बोथ कंपनीज आर लुकिंग आर प्रॉमिसिंग कंपनी। बराबर है। अच्छे मार्जिन, अच्छा धंधा। राइट सर? ओके सर। ओके। सो नीचे की जो कंपनियां है एकदम लोअर लेवल पे, जैसे प्रोवोग है, ज़ोडियाक है, जब अच्छा समय आता है ना मुकेश भाई, तब सबके शेयर डबल और 3 गुना होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ निवेशक होते हैं वाले जो कैटेगरी होती है ना वो इसी की निकलती है। कुछ निवेशक होते हैं जिनको लगता है कि अब देखो सब चल गया, सबके धंधे सुधर रहे भाई, प्रोवोग तेरे भी तो सुधरेंगे, तो वो उम्मीद पे ऐसी कंपनियों में बाय करते हैं। पर कंपनियां सारी उम्मीद पे खरी नहीं उतरती, क्योंकि उनकी आदतें नहीं होती है खरा उतरने की। जी सर, जी। बराबर। वो वापस लॉस करती है, वापस शेयर गिर के वहीं 15 साल बाद आ जाता है। तो ये सब से दूर रहे, टॉप की कंपनियों में रहे, मिडल ऑर्डर, राइट, मैं क्या कह रहा हूं, मिडल ऑर्डर में भी कोई अच्छी कंपनी हो तो उस पर ध्यान रखें। बराबर है। हो सकता है कोई अगर कंपनी सही में बढ़िया है, जो ग्रोथ तगड़ा कर रही है, ऊपर वाली कंपनियों से ज्यादा ग्रोथ, हाँ, उनके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, उनकी डेप्थ कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुकेश भाई, उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। जी जी। अगर टाइटन ने पिछले 20 साल में 3 बार लॉस किया है, पर नीचे की कोई कंपनी TCNS है, उसने कभी भी लॉस नहीं किया है, हाई कंसिस्टेंस है, तो अगर मेरे को दाव खेलना है आने वाले 20 साल का, मैं TCS पे खेलूंगा, TCNS पे खेलूंगा। ओके। अगर ऐसा है तो, नहीं तो जो बड़ी है वही बेहतर है। ठीक है सर। ओके सर। राइट। ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई, और बढ़िया काम आपने किया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। थैंक यू। प्रभाकर पाटिल जी। यस प्रभाकर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस डिस्कस। आवाज आ रहा है? यस प्रभाकर जी, क्लियर आ रहा है आपका आवाज। सो आपके पास क्या लास्ट वीक का कुछ किया नहीं है होमवर्क। ओके, आराम किया। नहीं, मैं क्या है कि पीछे का जो है ना पूरा 123 इंडस्ट्री का सबका पूरा सेल्स और प्रॉफिट निकालने के पीछे लगा। अच्छा। तो अच्छा, आगे का देखा नहीं गया। ओके, लेकिन प्रभाकर जी, हाँ, आप हो, देखो और भी जो लोग अभी पुराना एक्सरसाइज कर रहे हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबको समय देने वाला हूँ, जिसमें आप पूरा 123 सेक्टर करोगे, क्वालिटी कंपनी देखोगे, पर वो समय होगा उस समय का, ये टाइम साथ में चलने का है। अगर आप पीछे रह गए ना तो ये चैप्टर में कंफ्यूजन रहेगा। बराबर। इसलिए मुझे पता है कि आप लोग 129 पे काम नहीं कर सकते एक हफ्ते में,
बराबर कि नहीं? इसलिए अभी हमने खाली बेसिक किया है। जब पूरा वर्कशॉप खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आप सबको समय देने वाला हूँ। वो समय पे सबसे पहली चीज सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करके ये एक्सरसाइज को पूरा करना है। पर ये समय अभी चैप्टर के साथ रहना, बराबर ना प्रभाकर जी? यानी ये वीक में मुझे 4 सेक्टर का ही एनालिसिस करना। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? हाँ, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में कुछ और अपडेट्स दूंगा, तो नए अपडेट्स पुराने अपडेट मिलके आप ये 4 सेक्टर पे काम कर लेना, बराबर है? ठीक। ओके, आपके पास एरोस्पेस है, हाँ, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस है, बड़े काम का सेक्टर है, नया सेक्टर इमर्जिंग है, आपको राजा मिलने वाला है यहाँ से, वेल्थ क्रिएटर। स्पेशलिटी रिटेल है, अच्छा सेक्टर है, और टेक्सटाइल है, ये भी एक बढ़िया सेक्टर है, राइट? सो होप we will be able to have a healthy discussion on this sector, right? मुझे एक डाउट था। हाँ, कहिए सर। अभी सेल्स के हिसाब से कंपनी को टॉप से नीचे तक लगाया। हाँ, उसमें समझो 3 कंपनी 80% उनका मार्केट शेयर है। लेकिन वो 3 कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा नहीं होगा और उसके आगे के कंपनी का होगा, तो हिसाब से वो आगे के कंपनी लेना या ये ऊपर की 3 ही कंपनी लेने का? नहीं, अगर वो प्रॉफिट पे खरी नहीं उतरती है तो आप नीचे उतर सकते हो बाकी कंपनियों पे, पर ऐसा नहीं होगा कोई भी सेक्टर में कि ऊपर की सारी कंपनी बेकार है और नीचे की कोई कंपनी बहुत अच्छी है। ऐसा मैंने कोई भी सेक्टर में देखा नहीं है मुकेश, प्रभाकर जी। ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि ऊपर की कंपनियां हैं, नीचे की एक आध कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे सीमेंट में एक श्री सीमेंट है, तो वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, वो रीजनल प्लेयर है। अल्ट्राटेक लार्जर प्लेयर, अल्ट्राटेक, गुजरात अंबुजा, एसीसी, ये महारथी है सब लोग, बढ़िया बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो अल्ट्राटेक बहुत अच्छी कंपनी भी है, बड़ी भी है, पर श्री सीमेंट छोटी कंपनियों में आती है, पर वो बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। तो मैंने वर्षों पहले श्री सीमेंट भी लिया हुआ था, अल्ट्राटेक भी लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी में आपको अच्छी नहीं मिलेगी, राइट? छोटी में भी कुछ सेक्टर होंगे जहां पे बढ़िया कंपनियां मिलेगी, राइट? तो उनको भी हम फोकस कर सकते हैं, राइट सर? ओके, सो प्रभाकर जी, वी विल टॉक नेक्स्ट वीक, एंड नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, राजेश नागपाल जी. Let me check राजेश भाई is in today's meeting or not. मेरे ख्याल से राजेश भाई आज की मीटिंग में नहीं है. Let me move with राकेश दवे. Yes, राकेश भाई, you can unmute yourself. या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो राकेश भाई. ओके, या सर. गुड इवनिंग सर. राकेश भाई? फाइन, एकदम मस्त मजामा છું सर. ओके, आप कैसे हैं सर? एकदम मजामा, फाइन. यस सर, यस सर. अभी कोरोना का ड्यूटी अभी कैसा खत्म हो गया कि अभी भी चल हाँ रहा है सर, कोरोना? अभी मस्त शांति, अभी थोड़ा अभी थोड़ा शांति. कोरोना को अभी आराम दिया हुआ है, थोड़ा आराम कर रहा है. बढ़िया बढ़िया, राइट. राकेश भाई, आपके पास 4 सेक्टर है, चारों काम के हैं. डिफेंस, बिल्कुल सर, बिल्कुल. फर्नीचर तो इनफैक्ट वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर है. अदर फूड प्रोडक्ट एवरेज है. अदर फूड मतलब खाना, लेकिन दूसरे प्रकार का हो सकता है. इसमें मच्छियों की कंपनियां हो, अंडों की कंपनियां हो, यस सर, राइट. और रेस्टोरेंट, तो ये सबसे तो ग्लैमर में है आजकल. बर्गर किंग आ गया उसमें. तो कौन सा ओपन करे? रेस्टोरेंट ओपन करो. रेस्टोरेंट चलाते हैं. हाँ जी, चलो रेस्टोरेंट. उसमें वैसे कम कंपनियां है. जब मैंने रिसर्च किया तब वो था नहीं. ओके, बर्गर किंग था नहीं, पर अभी आ गया है. लेकिन अभी डालना पड़ेगा आपको. हाँ सर, मैं डाल दूंगा. हाँ, मैं डाल दूंगा सर उसमें, क्योंकि वो बड़ा खिलाड़ी भी है. बिल्कुल. चलो, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़े में तो मैकडोनल्ड आता है, वो भी नहीं डाला आपने. यहाँ पे वो तो आना चाहिए सर. मिला नहीं मुझे वो, उसमें मैंने सब उसमें किया था, मुझे ये 3 ही मिले थे. ओके, लेट मी चेक. नहीं दिखाई दे रहा है क्या?
ओके, तीन ही कंपनियां दिख रही है, जुबिलेंट, स्पेशलिटी, कॉफी डे। लो वो वापस निकल गया यानी। हाँ मतलब उसमें से निकल गया सर अभी। कोई बात नहीं, क्योंकि उनका क्या है, मेजर धंधा मैकडोनाल्ड का। यस यस सर, इवन आई नो सर। या रियल एस्टेट में सब मिक्स है। वेस्ट लाइफ करके है ना वो। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यस सर। पर आप डाल देना यहाँ जी सर। ताकि क्या है, हमें ये भी आइडिया रहे, चलो वेस्ट लाइफ भी तो है। जी सर डाल दूंगा सर। ओके, तो वेस्ट लाइफ आ गया, बर्गर किंग आ गया, और भी एक कंपनी है, और एक ये डांगी डम्स। हाँ डांगी डम्स, वो भी पर आपको सर यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ वो डेटा यहाँ नहीं अवेलेबल है। पर वो एसएमई की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, बीएससी पे लिस्टेड भी नहीं है, एनएससी में है, पर डेटा तो लेना। हाँ बराबर ना, काम लगेगा हमें। श्योर। जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो चलो और प्रिसाइज रिसर्च करें, डांगी डम्स को भी डाल दे। डांगी डम इंडिया के टॉप 10 में भी नहीं आती है। स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइज कंपनी, यानी बहुत छोटी कंपनी है, बराबर ना। लेकिन फिर भी डेटा होंगे तो हमें सीखने को मिलेगा वहां से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बट अभी की जो डेटा है उसमें जुबिलेंट फूड सबसे बेस्ट है, और ये हमने 2 साल पहले भी देखा था, वही बेस्ट थी और आज भी वही बेस्ट है। अरे 2010 में भी यही बेस्ट था, और हो सकता है 2030 में भी यही बेस्ट हो। यस सर, बराबर। यस सर। और ऐसे लोगों की आदतें भी अभी बदलती जा रही है, ज्यादा बाहर का खाना पसंद कर रहे हैं। तो मतलब ये देखा जाए तो ट्रेंड भी ऐसा है कि लोग बाहर का खाना पसंद कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि जुबिलेंट फूड इज द बेस्ट, क्योंकि वो अभी अपना धंधा बढ़ा नहीं वाला है और बढ़ने वाला है उसका। बराबर है, और काफी अभी तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस है, तो बढ़िया उम्मीद रखेंगे यहाँ पे। जी सर। कॉफी डे एक टाइम में बहुत अच्छा धंधा करती थी, हाँ है ना, पर डेप्थ बहुत थी इनके ऊपर, तो देखो प्रॉब्लम आ गया। आया ना प्रॉब्लम, तो इसीलिए हम पहले से तैयार रहे। ऐसी कंपनियों में क्यों निवेश करने का जो डेप्थ वाली है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, बराबर की नहीं। सर इसमें जो ये स्पेशलिटी है ना, उसके मुझे वो शेयर्स नहीं मिल पाए। किसके? ये जो स्पेशलिटी है ना, उसकी मुझे शेयर्स नहीं मिल पाए। फेस वैल्यू और उसका शेयर्स निकाला था, उसकी इक्विटी नहीं मिल पाई। तो इक्विटी कैसे लेंगे इसकी? वो क्वार्टरली बताया ना अभी आपने आगे, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट देख लेने का, या फिर मतलब वहां भी नहीं मिली करेंगे तो वहां पे भी नहीं मिली तो फिर रिजल्ट्स में जाके देखने का, जो रिजल्ट्स वो लोग पब्लिश करते हैं उसमें जाके देखने का। राइट, वो पीडीएफ फाइल, बराबर। यस सर, अभी आइडिया आ गया। या उसमें से इक्विटी लिख देंगे। वैसे देखा जाए तो लिख के कोई काम नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, क्यों ये सब टाइम बिगाड़ने का। और सर इसमें कॉफी डे में जो मैंने लिया है, ये मार्केट कैप वो बीएससी से लिया है, उसमें मैंने फॉर्मूला लगाया अपने हिसाब से मार्केट कैप का। ओके, वहां से मार्केट कैप लिया है। ओके, तो मेहनत किया है, यहाँ दिख रहा है। जस्ट एनएससी का जो फॉर्मूला था उसको कन्वर्ट करके दिमाग लगा के उसमें चेंज कर दिया। ओके, राइट। पर ये मार्केट कैप इनका गलत मार्केट कैप। अच्छा। गलत है, देखने दो तो मेरे को। एनएससी में नहीं आ रहा था मार्केट कैप। सर एनएससी से नहीं लिया मैंने, यहीं से लिया था। देखने दो मेरे को। हाँ एनएससी पे नहीं मिला था सर मुझे मार्केट कैप इसका। देखो इनका मार्केट कैप कितना बता रहा है यहाँ पे, 550 करोड़। हाँ 550 करोड़, 550 करोड़ का मार्केट कैप। और ये भी मार्केट कैप कब के हिसाब से है? 24 अगस्त। हाँ लास्ट ट्रेडेड थी तब। हाँ तो अभी तो 3-4 महीने हो गए, बराबर की नहीं। ये मार्केट कैप भी नहीं रहा है इनका, कैसे रह सकता है? राइट, तो काम का नहीं है यहाँ पे, देख के इसको कुछ भी, बराबर ना। ओके, अच्छा, जुबिलेंट का मार्केट कैप 34,000 करोड़ है। ओके, तो मतलब और अभी एक आध साल बाकी है निफ्टी में जाने का इसका। हाँ क्योंकि 50,000 करोड़ का मार्केट कैप करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा निफ्टी में जाने का। तो एक आध साल में पहुंच जाएगा। आने वाली है सर, अपने तो अभी से जानते हैं वो आने वाली है। सवाल ही नहीं होता। ओके, चलिए बढ़िया। तो एक क्वेश्चन हो रहा था, आप जब बोलते हैं कि ऐसे केसेस में अपने को 2% 3% एलोकेट करना चाहिए, तो वो अपने जो टोटल पोर्टफोलियो के जो अपन ने डिसाइड कर रखे, जैसे 100%, जैसे मैं 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके मुझे 2-3% डालने चाहिए। उसके हिसाब से कितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो, उसके हिसाब से।
और सर अपना एक ये भी आएगा आगे जाके कि अपन इंट्रिंसिक वैल्यू भी ढूंढ निकालेंगे। तो जैसे अभी अपन SIP कर रहे हैं, तो जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जाएगा तो अपन को लमसम डालना चाहिए क्या? फिर ज्यादा पैसा डाल सकते हैं वो समय पे अपने, बराबर ना, ज्यादा बराबर पैसा डाल सकते हैं। ठीक है सर। तो पर जैसे जुबिलेंट जैसी कंपनी है, तो जुबिलेंट जब ये स्मॉल कैप थी, देखो अभी भी ये है मिड कैप, ऐसा नहीं कि एकदम लार्ज कैप कंपनी है, पर ये स्मॉल कैप थी तो भी इसमें ज्यादा पैसा डालने का था। 5% डाल सकते हैं, 6% डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी है पर अपने सेक्टर की तो ये लीडर है। यस यस यस। तो जो कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी होती है, डेप्थ फ्री होती है, मार्जिन अच्छे होते हैं, कंसिस्टेंट होती है, आप वहां पे ज्यादा वेटेज डाल सकते हैं, बराबर ना? जी सर। तो ये वेटेज कैसे तय होता है सर, कि अपन कितना? वेटेज तय होता है आपके कॉन्फिडेंस से, कि आप इस पे कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो। जैसे जुबिलेंट को मैंने क्यों कॉन्फिडेंस दिया? क्योंकि ये सेक्टर का सबसे बड़ी चीज क्या है? राजा है, सबसे ज्यादा धंधा ये करता है, राइट? इनके मार्जिन सबसे अच्छे है, ये डेप्थ फ्री कंपनी है, इन सबसे वेटेज बढ़ता है। दूसरी बड़ी बात कंसिस्टेंसी, जब से पैदा हुई तब से इसने कभी भी लॉस नहीं किया है, अपनी प्रोमिस पे खरे उतरते हैं। तो ये सब चीजों से आप वेटेज बढ़ाते हो, आपका भरोसा बढ़ता है मैनेजमेंट पे। और अगर मैनेजमेंट बार बार गलत बोलती जाती है, जी सर, नहीं रखने की ऐसी कंपनी, जी सर, बराबर ना? मेरे को याद है, मैं अभी वो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं वो कंपनी में बरसों वेट करता था। मैनेजमेंट आके बोलता था इस साल हमारा धंधा कम हुआ क्योंकि हमारा एक आधा टरबाइन बंद था, बॉयलर बंद था, सॉरी, तो बॉयलर हम लोग रिपेयर करा रहे हैं, मस्त हो जाएगा, फिर देखो धंधा वापस आने वाला है। दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, फिर दूसरे साल नई कहानी आ गई, अरे सब रिपेयर हो गया, अभी वो दूसरा रिपेयरिंग वहां चल रहा है जिससे धंधा हमारा बेकार है। तो पता चल गया कि ये तो कहानी सुनाने वाले अपनी को जिंदगी भर। आधुनिक मेटल्स नाम की कंपनी है, जी सर, अभी तो कंपनी का नामो निशान नहीं है, राइट? पर आपको ये सारी चीजें धीमे धीमे पता चलती है कि कौन प्रॉमिस पे खरे उतर रहे हैं और कौन झूठ बोलते जा रहे हैं। जी सर। जहां पे आपको धोखा होता है वहां पे वेटेज घटता रहना चाहिए, जहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वेटेज बढ़ता रहना चाहिए। जी सर, जी सर, राइट? क्योंकि हम निवेश कर रहे हैं लंबे समय के लिए, बिल्कुल बराबर बिल्कुल ना? बिल्कुल सर। ओके, Thank you so much, sir. thank you very much to you, Rakesh bhai, also. And let us move toward next participant, Reshma madam. Reshma Daitya. Yes, Reshma madam. Sir, actually, sorry, I could not do the homework. Okay. But maybe till next time, so I'll surely do it. Yeah, no problem, madam. Still, this time we have given very few exercises, right? Okay. So this week we are going to move ahead with some more indicators. Kindly complete this both thing. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay, Reshma madam. Thank you very much, and we will talk next week on your exercises. Okay, sir. Yeah. Let us discuss with Mr. Riddesh Chaudhary. Yes, yeah, sir. Mr. Good evening. So everything is fine, Riddesh bhai? हाँ सर। Okay. आपने 4 सेक्टर पे काम किया, कमर्शियल व्हीकल, टेलीकॉम सर्विस, ट्रैवल सपोर्ट एंड यूटिलिटीज। कमर्शियल व्हीकल में देखा होगा लास्ट वेडनेसडे हम लोगों ने अच्छा ग्रोथ नहीं, और टेलीकॉम में तो सब नेगेटिव में ही। राइट, हम लोगों ने ऑटो पे बात किया था, उसमें भी कमर्शियल का काफी गाइडेंस आपको मिल जाएगा, राइट? हाँ सर। 4 में से कौन से सेक्टर पे बात करेंगे? ट्रैवल सपोर्ट, ट्रैवल सपोर्ट सर्विस। ट्रैवल सपोर्ट सर्विस, चलिए खोल दिया ट्रैवल, बहुत अच्छा लर्निंग का सेक्टर है। आइए, चलिए कहिए। हाँ तो इस मतलब इसके अंदर तो सिर्फ एक IRCTC ही है जो जिसका प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, बढ़िया है। ओके, खाली IRCTC और कुछ नहीं मिला सर? दूसरा एक BLS करके है, मगर उसका मतलब छोटी कंपनी है, धंधा कुछ भी नहीं है ना। देखो ये पूरा सेक्टर मिलके कितना धंधा कर रहा है? मतलब 7.5 मतलब, और मार्केट कैप में मैंने ये B1 पे किया था मगर वो निकला नहीं उसका। ये कोई बात नहीं, हमने ये निकाल दिया। मार्केट कैप कितना है इनका? 1 मिनट देख लेते हैं। 2,500 करोड़ है कि 25,000 है? ये IRCTC
कितना है? 23,000 करोड़ IRCTC का मार्केट कैप है, बराबर ना? यानी ये पूरे सेक्टर का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, राइट? नथिंग। 7,000 करोड़ का धंधा यानी क्या हुआ? कुछ ज्यादा है? नथिंग। नहीं सर। तो एक छोटा सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, राइट? लेकिन अगर आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, राइट, वो सब कंट्रीज में देखोगे तो ये सेक्टर छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, राइट? क्योंकि वो सब वहां पे टूरिज्म बहुत अच्छा है। इंडिया में टूरिज्म कैसा है वैसे? अभी तो मंदा है, और मतलब अभी इमर्जिंग हो रहा है। इमर्जिंग हो रहा है। इंडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, कितने अपने स्टेट से कितनी बढ़िया जगह है, लेकिन टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं था। तो स्वच्छ भारत अभियान इसको जबरदस्त मूव देगा। आने वाले समय में उम्मीद करें कि ये सेक्टर बहुत बड़ा बनेगा, राइट? कई काम हो रहे हैं ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा हो सकता है रिद्धेश जी कि अभी एवरेज इंडियन 3 साल में एक अच्छी छुट्टियां पे जाता है। अच्छी छुट्टियां बोलते हैं ना हम, वो 3 साल में एक लेता है एवरेज इंडियन, क्योंकि हमारी इनकम भी कम है इंडिया की। पर जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, हो सकता है ये जो डेवलप कंट्री है वहां के लोग 3 महीने में एक छुट्टी लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं ऐसा? हाँ, हो सकता है। और गवर्नमेंट भी अभी ये टूरिज्म पे ध्यान दे रही है। अभी सरदार सरोवर वो केवड़िया, मतलब वहाँ पे भी सारे स्टेट का वो बनने वाला है पूरा। या डेफिनेटली। तो उम्मीद रखे, ये सेक्टर आने वाले समय का सेक्टर है, इस पे ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो अगर आपको ध्यान रखना है तो कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको मिली जिसको फोकस करेंगे? ये एक ही है सर, IRCTC। ओनली IRCTC, कोई डाउट ही नहीं है। 24% का मार्जिन, मतलब कैसा मार्जिन है ये? ये मतलब आउट परफॉर्म, मतलब वो इंडस्ट्री को करता है। बहुत ही कम कंपनियों का ऐसा होता है। HDFC बैंक का ये मार्जिन है, डेवलप होने के बाद उसका ये मार्जिन हुआ। TCS का ये मार्जिन है, डेवलप होने के बाद हुआ। ये तो एक उगता हुआ सेक्टर है, इसका अभी से ये मार्जिन, राइट? तो इट्स अ वंडरफुल कंपनी। जब से इसका जन्म हुआ इसने कभी भी लॉस नहीं किया है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट? अ वेल्थ क्रिएटर, बराबर ना? तो जरूर इसके ऊपर ध्यान रखे, तगड़ा पैसा बन सकता है यहाँ पे, बराबर ना? ओके पीयूष भाई, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो को होस्ट बना दीजिए एक बार फिर से। थैंक यू। यस यस, या जस्ट अ मिनट चिंतन भाई। ओके, डन चिंतन भाई, हो गया। ओके ओके, ये डिस्टरबेंस कहां से आ रहा है? एक मिनट। ओके, नॉट एबल टू नो, नो प्रॉब्लम। चलिए, हमने ये सेक्टर पे चर्चा की है, आगे और इसमें और डेटा ऐड करेंगे, राइट? कॉमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटीज को भी देख लेना चाहिए था, पर आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यूटिलिटीज नॉन इलेक्ट्रिकल भी काम का सेक्टर है, लर्निंग के लिए। हो सकता है पैसे ना बने, पर लर्निंग के लिए काम का है, राइट? संजय देसाई इज पास स्टूडेंट, तो इनसे बात करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये तो सब ट्रेन लोग हैं। श्रीकांत जी, let me check whether श्रीकांत जी is there in today's meeting. Okay, श्रीकांत जी नहीं है। सुदीप गोयनका, Sudeep ji is also not there in today's meeting. Sudhanshu Pradhan. Yes, Sudhanshu ji. You can unmute yourself. अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, चिंतन भाई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ये तो। सर मेरे एंड से नहीं है। हाँ, पर पता नहीं किधर से आ रहा है। सर हम लोग को नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, हमारे एंड से कोई नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है? ओके, तो चलिए, नो प्रॉब्लम, मेरे वहीं से होगा, नो प्रॉब्लम। या
सुधांशु प्रधान जी, you can unmute yourself. Yes, please. Yes. एक और बार ट्राई कीजिए सुधांशु जी, काइंडली. ओके, थैंक यू. या सुधांशु जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. आपके पास 4 सेक्टर है. ऑटो, बैटरी, ये बनाया हुआ सेक्टर है, राइट? जो है नहीं, आपने इसको बनाया. बायोटेक्नोलॉजी देखना ही चाहिए. वेल्थ क्रिएटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अगेन वंडरफुल सेक्टर टू सी. एंड रियलिटी सेक्टर. तो इनमें से किस पे बात करेंगे हम सुधांशु जी? खुला है तो हेल्थ केयर की बात करते हैं. चलिए. ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटी. ओके, खुल चुका है. क्या कहना चाहोगे इस पे? सर इस पे ये अपोलो, फोर्टिस, यही दिख रहे हैं हर जगह. राइट. मार्केट कैप, मैं इसको जरा सॉर्ट करूं मार्केट कैप के हिसाब से. ओके. तो मार्केट कैप के हिसाब से तो अपोलो है, मैक्स हेल्थ है, फोर्टिस है, ये सबका नाम है. लेकिन धंधा कौन कौन कर रहे हैं? बिजनेस में कौन है आगे? ये लो, अपोलो हॉस्पिटल और नारायण हृदयालय, राइट? तो धंधे के बाद क्या देखेंगे? मार्जिन्स देख सकते हैं. मार्जिन्स देखेंगे. देखो, पहली चीज आपने जो बोली वो बिल्कुल सही बात है सुधांशु जी. पहली चीज आपने क्या बोली? अपोलो क्लियर लीडर है. मतलब कोई दो राय है ही नहीं यहाँ पे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का धंधा एक जितना. तो हम नहीं कह सकते एचडीएफसी इज क्लियर लीडर. ऐसे जो भी इंडस्ट्री होती है इसमें दो कंपनियां कुछ ऐसी होती है जो कांटे की एक दूसरे को टक्कर देती है. यहाँ पे कोई टक्कर पाई चार्ट से एकदम ही क्लियर हो जाता है. हाँ, एकदम, कि अपोलो क्लियर लीडर भारत भर में और जबरदस्त धंधा ये लोग करते जा रहे हैं. सो वंडरफुल ईयर. राइट. लेकिन अगर हम नारायण हृदयालय को भी देखें, एक मौका दे कि चल देखा जाए कि नारायण हृदयालय कैसा है, तो हम सीधे आ जाएंगे मार्जिन. राइट. सेल्स के बाद क्या देखने का? मार्जिन. ओके. तो मार्जिन वाइज देखें तो क्या आता है यहाँ पे? बहुत ही कौन? 7.373. ये गलत चीज है. मतलब ये फोर्टिस अगर 73 बता रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है. नहीं, अदर इनकम की वजह से है ये. बाकी फोर्टिस ने कभी प्रॉफिट नहीं किया है. बराबर है. राइट सर. सो फॉरगेट फोर्टिस. एनएच सर थोड़ा स्पेशलिटी हो गया ना. हृदयालय हार्ट रिलेटेड. नहीं समझा, क्या मतलब? अपोलो के हर तरह के पेशेंट होंगे, बट एनएच के सिर्फ हार्ट के होते हैं, इसलिए शायद वो थोड़ा अलग स्पेशल हो जाएगा. उसकी फिगर्स छोटी हो सकती है. बराबर. लेकिन फिर इसमें तो देखा जाए तो शेल्बी का भी स्पेशलिटी है, राइट? शेल्बी जो अपने जो जॉइंट रिप्लेस करने होते हैं उन्हीं में है, और ये मास्टर है उसमें. फिर अगर हम आई में देखें तो लोटस आई में मास्टर है ये लोग, राइट? अब एज ए इन्वेस्टर जब हम जा रहे हैं तो हम इनको ये कहेंगे कि आप हो सकता है कोई भी धंधे में हो, और धंधा आपको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो धंधा हो. अगर आप ऐसी फील्ड में हो कि धंधा ही नहीं होता है तो हम क्या करें? वो तो आपकी गलती है. बराबर कि नहीं? कि जब आपने हॉस्पिटल डाली, आपने जो पढ़ाई की, तब ये समझना था कि मुझे इसमें कम धंधा मिलेगा. अब आपने अगर वो सिलेक्ट नहीं किया है तो वो तो आपकी गलती है. एज ए इन्वेस्टर हमको तो धंधा चाहिए. तो धंधा कौन कर रहा है यहाँ पे? अपोलो हॉस्पिटल, एकदम राजा. मार्जिन देखे यहाँ पे, तो मार्जिन किसके अच्छे हैं? देखो, शेल्बी के भी मार्जिन अच्छे हैं. शेल्बी और अपोलो मार्जिन्स में अपोलो, ये दोनों के मार्जिन बहुत अच्छे हैं. लेकिन हम टिक यहाँ पे अपोलो को इसलिए करेंगे क्योंकि अगर शेल्बी के धंधे अपोलो जितने होते, अपोलो के करीब के होते, तो हम कहते कि चलो यार तुम्हारा मार्जिन तो अपोलो से ज्यादा है तो वी कैन कंसिडर यू. पर धंधे में 20 गुना ज्यादा है अपोलो, है ना?
तो इतना गुना ज्यादा कब होता है पता है? जब कोई नेशनल प्लेयर हो और सामने कोई डोमेस्टिक प्लेयर हो। शेल्बी इज अ डोमेस्टिक, एक रीजनल प्लेयर, एक ही एरिया में, गुजरात में उनका धंधा है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल नेशनली ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये टक्कर नहीं दे सकता है। गुजरात में कल कोई प्रॉब्लम हुआ तो शेल्बी प्रॉब्लम में आ सकता है, जबकि अपोलो को कोई एक स्टेट से लेना देना नहीं है। सो हमें वहां पे प्रीमियम देना चाहिए और रिस्क नहीं है वहां पे। राइट सर, वो तो पूरा नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। क्या सो यहाँ पे हमारा थम्स अप जाना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल पे। राइट, ओके। इनके अलावा सुधांशु जी, ये आधा रिसर्च है। हम अभी इसमें जब डेप्थ पेइंग कैपेसिटी ऐड करेंगे, राइट, डेप्थ ऐड करेंगे और कुछ चीजें देखेंगे तो हमारी और आइडिया क्लियर होगी। इतना डेटा देख के तो अपोलो पे ही हमारा टेक होगा, पर लेट अस वॉच नेक्स्ट वीक। राइट सर? श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू टू यू ऑल्सो सुधांशु जी, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया जिससे हमें जानकारी मिली इस सेक्टर की। सो लेट मी मूव टुवर्ड्स विजय चौधरी। यस विजय भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विजय भाई, आप अपनी बात रखें उससे पहले धन्यवाद दे देना मेरे को आपको, क्योंकि कल आप लोगों का परफॉर्मिंग डे है। यस सर, सर आपके आशीर्वाद से सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबकी मेहनत है तो सब बढ़िया ही होगा। जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बढ़ती है, बराबर की नहीं? जब मेहनत नहीं होती है तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की नहीं होती है। आप लोगों ने बढ़िया काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कल का जो सेमिनार रहेगा ये माइंड ब्लोइंग रहेगा, राइट? और आपका काम मैंने कल चेक भी किया, इट वाज वंडरफुल, राइट? सो मेरे बाकी पार्टिसिपेशन से भी रिक्वेस्ट है कि कल का बैंकिंग पे जो बात होने वाली है इसको मिस नहीं कीजिएगा। कई सवाल के जवाब आपको कल के लाइव सेशन में मिल जाएंगे। और विजय भाई, हम लोग प्रयास करेंगे कि YouTube पे लाइव, जैसे हमारा 8-10 हजार लोगों का परिवार है YouTube पे, वो लोग लाइव आपकी कल की मीटिंग को देख सके। अब तक ये सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन चिंतन भाई कल हम प्रयास करेंगे कि इनकी लाइव मीटिंग उन लोगों को दिखे। यस यस, 110%। ट्राई, बराबर ना? चलो सर, ये आप कोशिश रही तो सब कुछ बढ़िया होगा। या ओके, तो आपके पास 3 सेक्टर है विजय भाई, आप किस पे बात करना चाहोगे? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा किया, क्योंकि कार्स पे पिछले हफ्ते बात हो गई तो रिपीट हो जाती, राइट? कहिए, क्या लाइफ इंश्योरेंस में क्या कहोगे आप? ये कहेंगे इसकी सेल्स को हम जो है नेट प्रीमियम को ही देखेंगे, टोटल सेल्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें काफी वेरिएशंस आती है। उसमें और धंधे भी इनके होते हैं और इधर अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो कभी उसमें उनको फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, तो वेरिएशंस काफी रहती हैं उसमें। तो इनका, हाँ, इनका जो असली नेचर है वो उनके नेट प्रीमियम से पता चलता है कि ये कैसा कर रही हैं कंपनियां। यहाँ पे नेट प्रीमियम लिख दो। यस सर। ओके, तो अब हमें समझ में आएगा कि दिस इज नेट प्रीमियम, राइट? ओके, यस सर, यस। ओके, तो आपने नेट प्रीमियम ही लिया, बहुत अच्छा किया। ओके, फिर इसका ये देखा अपना नेट मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, जिसके सबसे ज्यादा हैं ये HDFC लाइफ के ही हैं, राइट? हालांकि SB लाइफ भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। हाँ। उससे धंधे में HDFC लाइफ से ज्यादा है उनका, लेकिन कमाल का है, मार्जिन उसका उससे थोड़ा कम है। तो इससे ये मार्केट कैप उसका ज्यादा है, क्योंकि मार्केट कैप इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को किस कंपनी पे ज्यादा भरोसा है। बराबर है, राइट? तो ज्यादा भरोसा किसकी ओर जा रहा है? HDFC लाइफ। HDFC लाइफ, राइट? ओके, तीन ही कंपनी क्यों है?
तीनों एक जितना धंधा कर रही है ऑलमोस्ट, तीनों के मार्जिन ऑलमोस्ट एक जितने हैं, राइट। सिर्फ क्यों 3 कंपनियां यहाँ पे? अभी और लिस्ट भी होनी है, तो अभी हम देखेंगे बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है आने वाले समय में आए, हो सकता है मैक्स, बराबर है। मैक्स अलग प्रकार से है, प्योर इसमें नहीं है। और कई कंपनियां हैं, बिरला, राइट। तो हम लोग देखेंगे जैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पे 10-12 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस की हो जाएगी, बराबर कि नहीं। लेकिन जो पहला आया वो इसलिए आया क्योंकि उनके प्रॉफिट सबसे अच्छे थे। तो यही कंपनियां लीड करने वाली है आने वाले 10-15 साल लाइफ इंश्योरेंस को। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट नहीं हुई मतलब कि कोई कंपनी रह गई, मेरा वहां पे इन्वेस्टमेंट होता अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। जो है वही अच्छी है। HDFC और SBI ही ये सेक्टर में बढ़िया है, बराबर ना विजय भाई? बराबर सर। और एक ये नया सेक्टर है, इट्स न्यू ग्रोइंग एंड इमर्जिंग सेक्टर। या सही बात है सर आपकी, करेक्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनका डेब्ट पेइंग कैपेसिटी तो देखने से रहे, वो तो नहीं देखेंगे ICR तो, बराबर की नहीं? यस सर। तो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी जब लोग ढूंढेंगे तब आप क्या ढूंढोगे इंश्योरेंस की कंपनी का? उनके NPAs, NPA, इनमें NPA नहीं होंगे, नहीं वो सॉरी, जो उनके इनको देने पड़ते हैं क्या, जो लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम्स का सर, क्लेम सेटलमेंट का, ये भी एक अच्छी चीज है। ओके, इनके अलावा एक हमने देखा था कंसिस्टेंसी एट 5th ईयर प्रीमियम। 5वें प्रीमियम भरने के बाद भी कितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं, तो ये आपकी कंपनी की क्वालिटी बताता है, बराबर कि नहीं? ठीक सर। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि लोग 5वें प्रीमियम के बाद भी बने हुए हैं, तभी इंश्योरेंस कंपनियों को अच्छा पैसा मिलता है। आप निकल जाओगे तो कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा। कंपनियों के पास तो जितनी ज्यादा एसेट रहती है उतना उनको ज्यादा फायदा है, राइट। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, राइट सर। इसके अलावा एक यील्ड है, यील्ड ऑन एसेट्स, कि इनके पास इतनी एसेट्स है। जैसे एसेट्स का मतलब ये हुआ कि HDFC लाइफ ने इस साल 32,000 करोड़ का प्रीमियम लिया, पर ये तो पिछले 15 साल से प्रीमियम ले रहे, तो इनके पास 2 लाख करोड़ जितना तो एसेट होगा कि नहीं। तो इस पे ये कितनी यील्ड पा रहे हैं, राइट। तो यील्ड ऑन एसेट्स देखते हैं कौन सी कंपनी की यील्ड बहुत अच्छी है, इससे पता चलेगा कि किसने अच्छा निवेश किया है, बराबर की नहीं? ठीक सर, ठीक, राइट। आप इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देख सकते हो कि किसका ज्यादा है। अब देखो वो तो इरडा ने तय किया है तो सबका ही अच्छा होगा, बराबर की नहीं? पर एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने जैसी, देख लेना, जितने डेटा देखते हो वो अच्छा ही अपने लिए, बराबर विजय भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर एक सबको फायदा होगा। ओके। एक HDFC, ये सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस आप डिटेल में एक बार सबको समझा देंगे तो ये मेरे साथ बाकियों को भी बड़ा फायदा लगने वाला है, बराबर है। ओके, HDFC लाइफ, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, AMC, ये तीनों वो सेक्टर है जो सेक्टर में इनकमिंग पैसा जो आता है उससे बड़ा मतलब है, राइट। म्यूचुअल फंड की कंपनियां हो, जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ, तो ये इनकमिंग पैसा देखना है, नेट इन्वेस्टमेंट या नेट प्रीमियम कितना आया, बराबर। जनरल इंश्योरेंस में भी नेट प्रीमियम ही देखे, टोटल सेल्स न ले, टोटल इनकम ना ले, नेट प्रीमियम इनकम देखे। ये हुआ आपका मेजर सेल्स यहाँ पे, राइट। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने एसेट्स बना के रखी हुई है। तो ये लोगों को 2 प्रकार की इनकम होती है, एक प्रीमियम इनकम, एक एसेट इनकम। निवेश किया है उस पे इनको इंटरेस्ट भी मिलता है ना, दैट इज एसेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम को ये कॉलम में मत लेना, ये कॉलम में खाली प्रीमियम इनकम लेना, राइट।
जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स, और उसमें तो वही उसी प्रकार से सारी चीजें आएगी। राइट सर। नेक्स्ट, जैसे रिसर्च में आगे आगे हम बढ़ेंगे, हम थोड़ी इसकी और क्लियरिटी और करते जाएंगे। बराबर पीयूष सर, हाँ? एक इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब हम इसकी एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं ना, वो आम जो एक है उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते हैं। बराबर है। ओके। तो वो एक जब उस पार्ट पे आए तो आप उसको एक बार जरूर डिटेल से बता देना। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम। एक बार हमने, अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस का हमने जो सेक्टर प्रेजेंट किया हुआ है उसकी भी डिटेल देख लेंगे ना, यूट्यूब वीडियो पे जो बताया हुआ है या अपनी ऐप पे है, तो भी उनको पता चल जाएगा क्या लेना है। हमने उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। बराबर ना। बाकी लेना नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, और नेट प्रीमियम, ये दोनों फिगर पे ही ध्यान रखें। राइट सर, राइट। So let me move towards next participant. Okay, we have already discussed with everyone. Let me check your comment. कुछ चीज अगर यहाँ पे आई हुई है। राकेश दवे ने बताया मेट्रोपोलिस इज मिसिंग, तो मेट्रोपोलिस ये सेक्टर में नहीं है। मेट्रोपोलिस आएगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। उसका कंपैरिजन हम करेंगे डॉक्टर लालपत लाभ के साथ। राइट, डॉक्टर लालपेथ हो, या तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे आपकी थायरो केयर के साथ। बराबर ना। तो मेट्रोपोलिस यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके अलावा ओके, योर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज हैव बीन क्लियर्ड। सो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू लर्न मोर ऑन दिस टॉप क्वालिटी एनालिसिस। स्टे कनेक्टेड, learn all things and complete your homework so that we can discuss it in detail. Yes, कहिए क्या कह रहे हो आप? सर मेरे पास अभी SBI का भी स्टॉक है और HDFC का भी है और बंधन बैंक का भी है। तो जैसे कि 15% से ग्रो होने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी मेरे पास SBI है, तो मैं उसको बेच के IRCTC या बंधन बैंक या ADC में ये वेटेज बढ़ा सकता हूँ, तो वो सही रहेगा ना? देखो SBI कितने परसेंटेज के है? वैसे मेरे वेटेज सभी में कम ही है, ज्यादा नहीं है। पर वो ग्रोथ के हिसाब से देखा तो SBI का बोले तो प्राइवेट POSP बैंक का तो ग्रोथ कम ही है, 5%। देखो क्या करो आप, 7-8% बैंक में होना चाहिए हमारा, 7 से 10% पैसा बैंक में वेटेज में होना चाहिए, तो 5% आप HDFC बैंक रख सकते हो, 2% जितना SBI रख सकते हो और 2% जितना बंधन बैंक रख सकते हो। बराबर है? जी। 2%, राइट। उसके कुछ कारण है, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट बैंक का सेक्टर बहुत कम ग्रोथ है, पर आपका SBI का ग्रोथ अच्छा है। कंसोलिडेट कर रहे सब बैंक को, इससे और इनको फायदा होगा। और SBI के पास ग्राहक कितने हैं? 5 करोड़। ये बढ़ रहे हैं, मतलब इनको लाइफ बेचना है, जनरल बेचना है, ये 5 करोड़ ग्राहकों को बेच सकते हैं। राइट, इजी इनके पास बेस है, पैसा तो बनेगा ही आपका SBI में। राइट, पर बड़ा ज्यादा वेटेज मत रखो, कम रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं। बराबर दीपक भाई? Okay. Thank you, sir. So thank you very much. And now we are going to meet again next Tuesday. Updation for your new learnings will be from tomorrow itself. Thanks a lot. Jai Hind.